A very good afternoon to all present. As we all know, we gathered here to seek some clarifications on promotion-related concerns, which are a pertinent area for all of us. And this has become a really pressing concern with no promotions happening for almost more than a decade now. So seeking greater clarity and addressing queries that we may have about, for example, which set of guidelines to follow, whether it is the 2020 APIs or the 2013 amended guidelines with capping on research scores, or the 2016 amended version, and now finally the 2018 guidelines are here. Again, there is an option for without points and with API points, which are a slightly relaxed version of all the other previous versions. And to top it up, we also now have the option forms which we are required to fill for which set of guidelines we need to be evaluated on or we should be evaluated on. So, in order to clarify all such confusions, we have amongst us today Dr. Arun Atri, who's an assistant professor at Bhagat Singh College, and he is also currently the academic council member of the University of Delhi. We welcome you, Dr. Atri. And we thought it is only appropriate for him to speak on such matters and to guide us through this maze of, multiple kind of confusions that we may have. And so a very warm welcome to you. We are also very grateful to our respected principal madam, Professor Harpreet Kaur, who has always been very, very encouraging in whatever endeavors or whatever concerns we may have. And she has made it possible for us to connect here to discuss on this particular issue. Ma'am, your ever supportive approach, assures us that we can hope to look forward to positive promotion outcomes. Also I'd like to mention here, thank you, Lokesh, for helping us arrange this and having connected with Dr. Arun. तुम्हारे बगैर नहीं होता, Lokesh. And without delay any further, I'd now request our principal madam to say a few words before Dr. Atri begins. Professor. Good afternoon, everyone. I for a very, very warm welcome to Dr. Arun Atri. He has conceded to our request because we had certain apprehensions about how to do the marking and all, because we have already given advertisement and we are in the process of marking, and so that if some outcome is there, positive outcome is there, we would really be happy. But we had certain apprehensions. Even the candidates at their end also had certain apprehensions as to how to proceed, how to do the marking, and this whole backlog of many years is really creating a lot of mess. Like Garima has said, because the new notifications keep on coming, and the marking really becomes difficult. And we at the end doing marking, then if we are doing something which is not up to mark, then which is not correct, then that would create a lot of problems. So we really wanted this kind of discussion, informal discussion. It is a small group is there of our own faculty members, or rather the stakeholders, and so we just want clarity on many things. And Dr. Arun, I think, is the best person because he has been into it. Also, he has really good political profile as well, and he has gone through these transition and these changes in these ordinances. And so I think he is really going to be very fruitful. This session is going to be very fruitful, and he is going to guide us into many things where we are actually stuck up or where we have certain queries in our mind. So I welcome Dr. Arun Atri once again, and also my own group, because who are so keen and they want to delve into new things and learn new things also, and so they are curious and their curiosity is ever growing, and that is a good sign. So once again, good afternoon, everyone. Over to Garima. Thank you, Sonal. Thank you so much for being so encouraging.
With these words, I now want Dr. Arun Attri to join. Would you like to make a presentation, Arun? How do we go about it? First, you like to make a presentation? Yeah. Thank you, Garima ji, for introducing me, and thank you, Principal Ma'am, and Lokesh ji for inviting me, and in fact the entire Mata Sundari College for giving me this opportunity to be of some use, or of some of I hope I could bring some clarification regarding the UGC regulations 2018 and the option that is being given. So I would be using a presentation. If you allow me to, I can along with my some PPT, I would like to Sure. discuss the things. And we've heard you on YouTube channels, and so we really hope that we're hoping that we'll get some clarity, and we're looking forward to your presentation. So, Okay. Thank you. So, as you all know, that we have been given an option form has been out, and many teachers are being confused that which option they should choose. So, wait a minute, just let me. yeah. My screen visible? Yes. Visible. The PowerPoint as of now, no, but you are visible. Yeah. Now the PowerPoint is visible. Now? Visible. Okay. So, today what we are going to discuss, actually the option is of what, regarding what, and for whom. What, just the brief outlines that what we are going to discuss today. What eligibility we need under CAS 2010 and CAS 2018. What relaxations have been given under UGC regulations 2018. Which option is beneficial for us, and whether ad hoc temporary service in the promotions can be counted under CAS 2010 as well as CAS 2018. Now, first let me give this presentation, and once I am done, then you can post your queries or you can ask the questions regarding that. Right? So I will just request you to be patient and first listen to it, see to it, and you can note down your doubts if you have any, and at the end we can have the discussion about all the doubts. Now, first of all, we need to understand the difference between CAS 2010, CAS 2018, and CAS 2010 as per UGC regulations 2018. We need to understand that option has been given to us regarding what. Many of us are confused that whether we should go for 2018 or we should go for 10. Let me tell you that CAS 2010 was notified and came into effect with effect from 30th June 2010. Now, that was CAS 2010 is given under UGC regulation. So whenever a regulation comes, there is a promotion career advancement scheme criteria given in that regulation. So UGC regulation 2010 contained career advancement scheme of 2010. So CAS 2010 is a scheme which was given in notified in UGC regulations 2010, which came into effect from 30th June 2010. Now what happens? There is a UGC regulation. There were some amendments after that in UGC regulations 2010. There were some amendments, and then finally we had a new UGC regulation 2018, which came into effect from 18th July 2018. Though our university adopted in 1st and 2nd July 2019. And now we have to see that what those UGC regulations gives us an option. Now UGC regulations 2018 gives us an option to opt for CAS 2018 and CAS 2010. So we need to understand that CAS 2010 option has been given to us under UGC regulation 2018, which has been relaxed. So it means we do not have to opt for CAS 2010 as per UGC regulation 2010. We have to opt for CAS 2010 relaxed by UGC regulations 2018,
and cash 2018, which are obviously given under UGC regulations 2018. Right? Now, if you see the option form, this is the option form which you all have got. So it says, I hereby opt the dash scheme in terms of clause 6.3. अगर इसको पूरा पढ़ेंगे आप तो ये बोलता है clause 6.3 of the UGC minimum regulation जो भी हमारी 2018, देखिए 2018 for promotion from this to this. So we have to opt. This option has been given in terms of clause 6.3. Now, what is that clause 6.3 of UGC regulations 2018? Now, what is that clause 6.3 of UGC regulations 2018? The clause 6.3 of UGC regulation 2018, basically I have interpreted that in my own language to make you understand that the option is given to, you can see the two type of options we are understanding. The first para of clause 6.3 says that the option is given to get promotion by opting for cash 2000. वो वहां पे बोलता है existing regulations, तो उसको मैं बता रहा हूँ existing regulations were there at that time, cash 2010, when this UGC regulations 2018 were not notified. So existing regulations, they were cash 2010. So you have an option to get promotion by opting for cash 2010 up to 18 July 2021. मतलब 18 जब वो notification हुआ UGC regulations 2018 का, उससे पहले कैश 2010 एप्लीकेबल था. सो यू हैव एन ऑप्शन टू opt for cash 2010, right? If you have already become eligible, so it means that even after UGC regulations 2018 has implemented, you have an option to opt for old scheme of cash 2010. Now, up to when you can do that? Up to when you can opt for cash 2010? Obviously, जो हमें मतलब लार्जर अंडरस्टैंडिंग जो होती है लॉज की, व्हेन ए न्यू लॉ कम्स इनटू इफेक्ट, द ओल्ड लॉ इज सुपरसीडेड बाय द न्यू लॉ. सो 18th July 2018 को व्हेन यूजीसी रेगुलेशन 2018 केम इनटू इफेक्ट, कैश 2010 वाज सुपरसीडेड और यूजीसी रेगुलेशंस 2010 वर सुपरसीडेड. नाउ इट इज गिविंग यू एन ऑप्शन टू opt for cash 2010, and this option you can exercise up to 2021. 18 July 3 साल का टाइम दिया है, up to 18 July 2021. Now I am telling you later on, actually क्या है कि we need to see, बड़ा scattered way में दिया हुआ है ये. Most of the time we have the confusion because किसी part में कहीं पर कुछ दिया हुआ है, कहीं किसी part में कुछ दिया हुआ है. If we have a holistic reading of that, then we will come to know. अभी तो यहाँ पे लग रहा है जैसे बड़ा अच्छा लग रहा है हमारे को कि भाई हमारे को ऑप्शन दी जा रही है पुराने कैश 2010 में भी. मतलब वो ऑप्शन हम कब तक एक्सरसाइज कर सकते हैं? वी कैन एक्सरसाइज दैट ऑप्शन अप टू 18th July 2021. तो 3 साल की विंडो दे दी हमारे को कि या तो आप कैश 2018 वाला ले लो जो कैश यूजीसी रेगुलेशन 2018 में है, या आप अपना कैश 2010 वाला जो है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो. एंड दिस ऑप्शन यू कैन एक्सरसाइज अप टू 18 July 2021. Now, we will see later on ki what are the merits and demerits if we go for this option. Now, there is a when we go into this 6.3 clause में एक 7th जो सब clause आता है वो कहता है for pending cases of promotion you can opt for. So by and large we understand that हमें जो option मिल रही है, I am again saying without going into this any complexity or technical terms, I am simply giving you that we have an option of opting a promotion scheme of cash 2018 or cash 2010 which is relaxed in UGC regulations 2018 with regard to API. देखिए जो कैश 2010 था उसमें जो API था, जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ था वो कहा था कि भाई हमें तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपने ये लगा दिया, और वो मैटर कोर्ट में भी है. जो पिछले वाला जो लगा हुआ है उसमें से काफी लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं. कोर्ट ने एक पार्ट का तो डिसीजन दे दिया है कि यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ऑब्वियसली वो एक बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है. कभी भी आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो चीज मुझे नहीं पता थी वो नहीं लगा सकते. तो हमारे पास ऑप्शन है कैश 2010 की विद रिलैक्स्ड API स्कोर्स.
वो मैं बताऊंगा आपको बाद में कि हमारे क्या रिलैक्सेशन है एपीआई स्कोर की। एंड कैश 2018, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कैश 2010 एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2010 वाला, जो जिसमें पूरा एपीआई था। ऑब्वियसली कोई इसको क्यों लेना चाहेगा जब उसमें इतना स्ट्रिंजेंट एपीआई स्कोर चाहिए था, तो वो क्यों लेना चाहेगा? तो इट हैज बीन रिलैक्स्ड। तो आप देखिए कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 ने रेट्रोस्पेक्टिवली उसको रिलैक्स किया है कैश 2010 को, बट दैट इज ओनली रिगार्ड टू एपीआई। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बाद में मैं आपको एक सोल्यूशन भी बताऊंगा जो हमारे एडॉक एक्सपीरियंस को काउंट करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से सारा ये प्रमोशन जो बेसिकली बताते हैं कि वो प्रमोशन रुके पड़े हैं। So I will tell you that how the things can move forward also. So at this point of time, what we have understood is that there is an option that we can get for you can opt for either cash 2018 and cash 2010 relaxed by UGC regulation 2018. तो cash 2010 की as per UGC regulation 2010 की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जो सारा क्राइटेरिया जो 2010 वाला था पर रिलैक्सेशन जो दी है यूजीसी रेगुलेशन 2018 में, और वो रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ एपीआई के रिगार्ड में दी है, और किसी भी मतलब नो अदर कंटेक्स्ट इट हैज बीन रिलैक्स्ड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए हियर बाय ऑप्ट, आई विल कम लेटर ऑन कि इंडिविजुअल केसेस में कैसे डिफर करेगा ये, और हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए आई हियर बाय ऑप्ट। तो बेसिकली आप लिखेंगे कैश 2010 और यहाँ पे लिखेंगे कैश 2018 स्कीम, क्योंकि वो अपने आप बता रहा है कि वो स्कीम इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 6.3 इसमें देयर इज सम, कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्या लिखेंगे कि कैश 2010 एज रिलैक्स्ड, नहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कैश 2010 लिखेंगे, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कैश 2010 स्कीम इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 6.3, पूरा पढ़ेंगे तो वो लिखा हुआ है कि वो कैश 2010 की स्कीम एज पर 6.3 एंड 6.3 क्लॉज ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2018। तो वो इम्प्लाइड है कि जो आप कैश 2010 ऑप्ट कर रहे हैं वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 में ऑप्शन है, तभी आपको दी जा रही है ऑप्शन, नहीं तो नहीं जा सकती। और यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम ये स्टेजेस हैं, जैसे फ्रॉम 6000 टू 7000 या फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, कुछ भी आप लिखिए, 6000 एजीपी 6000 7000 7 से 8 या 8000 से 9000, वो स्टेज आएंगी यहाँ पर स्टेजेस आएंगी। I will come to this later on, once I have given you the overview. Now you need to understand ki what basically we require in cash 2018 when we opt cash 2018, what we need to have. Now for first promotion, that is stage 1 to stage 2 जब हम जाते हैं, और academic level AL मतलब academic level 10 to academic level 11, जिसको हम जो हमारा पुराना जो 7/6 पे कमीशन में था, that was 6000 to 7000. The first condition is that whether you are having PhD or not, if you are having PhD, then the time required is 4 years. तो आपको प्रमोशन, पहला प्रमोशन कब मिलेगा, जब आपने एंट्री की थी पीएचडी के टाइम पे, जब आप परमानेंट हुए तो आपके पास पीएचडी डिग्री थी और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर फर्स्ट प्रमोशन। नाउ इफ आपके पास पीएचडी डिग्री नहीं थी बट यू आर एमफिल, देन यू मस्ट हैव 5 years ऑफ सर्विस, और if you are neither having PhD nor MPhil, then 6 years of service is required along with PG, post graduation, at the time of entry, right? So 4, 5 or 6 year depends on whether you have done PhD, MPhil or PG. Now remember, the PhD MPhil has to be before getting permanent or at the time of getting permanent. You cannot say that I got permanent on say 21st of January and on 25th January I got my PhD degree, my notification came of I have qualified. Submission, ये सब नहीं है. Whether you were possessing the PhD degree at the time of entry will be counted. So this is the first point. The second eligibility is that one orientation and one refresher. I am telling in this in cash 2018. मतलब अगर हम ऑप्ट करते हैं कैश 2018 तो पहले प्रमोशन के लिए हमारे को ये रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमें ऑप्शन दी है कैश 2018 की, तो क्वेश्चन है कि क्या मेरा पहला प्रमोशन ड्यू हो रहा है 2012 में, मतलब मुझे मान लीजिए 4 years ऑफ पीएचडी मेरे 2008 में मैं परमानेंट हुआ
और 2000 पीएचडी के टाइम पे 2008 में हुआ, मैं 2012 में एलिजिबल हो गया मैं फर्स्ट प्रमोशन के लिए। तो क्या मैं कैश 2018 में करा सकता हूँ प्रमोशन? यस, मैं करा सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे ऑप्शन दिए कि मैं मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पीछे से भी मैं करा सकता हूँ। लेकिन कहां पर प्रॉब्लम आएगी, आप देखिए कि आप अपने आप ही प्रमोशन नहीं लेना चाहेंगे इस वाली स्कीम में, कहां पे प्रॉब्लम आएगी? विल सी दिस। वन ओरिएंटेशन एंड वन रिफ्रेशर, या 2 एफडीपी, जो भी हम जो 1 वीक की जो एफडीपी होती है वो कर सकते हैं, या मूक्स जो भी हमारे को दिया हुआ है उसमें हम ये कर सकते हैं। पीएमएमएनटी जो हमारा एनटीएम, ये जो पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल टीचिंग मिशन, जो टीचिंग लर्निंग सेंटर्स जो बनाए हुए हैं, वहां से भी जो आप एफडीपी करते हैं वो एलिजिबल है इस चीज के लिए। तो और कोई एफडीपी नहीं, जो टीचिंग लर्निंग सेंटर्स जो क्रिएट किए एमएचआरडी ने, वो वहां से आप करेंगे तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पॉइंट। बट आई विल टेल यू दैट अप टू 31st December 2018 the required, if your eligibility is before 31st July 2018, कोई भी पढ़ रही है इस प्रमोशन में तो वो exempt है आप रिफ्रेशर या ओरिएंटेशन से। I will mention it later on also. Now the problem you see, what is the promotion criteria? So if as I told you that I got eligible in 2012, so can I opt for cash 2018? Yes, I can opt for, but what is the promotion criteria? See this promotion criteria. A teacher shall be promoted if he or she gets satisfactory or good grade in the annual performance assessment reports, जिनको अपार बोलते हैं हम, ये गवर्नमेंट में होती हैं जो लेकिन अब यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट्स ऑफ एटलीस्ट 3, 4, 5। ये 3, 4, 5 क्यों? अगर आपने पीएचडी के टाइम पे एंट्री की, पीएचडी 4 साल वाली एंट्री की है तो उसमें से 3 साल, अगर आपने 5 साल में एमफिल वाले के साथ एंट्री की है तो देन 4 years, और अगर आपने 6 साल पीजी के साथ एंट्री की है तो उसमें से पिछले 4 सालों में 5 सालों में, तो 4 में से 3, 5 में से 4 और 6 में से 5, इनमें से आपका स्कोर जो है सेटिस्फैक्टरी या गुड होना चाहिए। हमको जब ये जब आया था तो हमको लगा था कि बड़ा मतलब सुनने में ये अच्छा लगा था कि भाई एपीआई खत्म हो गया है, लेकिन आप देखिए कि ये सेटिस्फैक्टरी और गुड ग्रेड हम कहां से लाएंगे, क्या करना क्या पड़ेगा हमारे को। और इसमें साथ में जब हमारा ये ग्रेड आ जाएगा तो वो एक जो हमारी प्रमोशन जो हमारी स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी है वो स्क्रीनिंग करेगी और रिकमेंड कर देगी कि हाँ इनको प्रमोट कर दिया जाए। कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी, इट्स ओनली स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी। स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी का मतलब है आपने जो क्लेम किया वो क्लेम को स्क्रीन करेंगे। अगर आपका क्लेम सही है तो आपका इंटरव्यू, मतलब ऐसा सच ये नहीं है कि आपका इंटरव्यू होगा या आप कितना परफॉर्म करते हैं उस बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स that you have claimed, the criteria that you have fulfilled, the eligibility that you have fulfilled, that will be screened, and if you are successful in that, then you will be promoted to the next stage. So this is for the first promotion. Now I will come to the satisfactory or good. You need to understand that इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2018 में, अब आप सुनिए, मैं 2018 if I am opting when I became eligible in 2012, तो पिछले 4 सालों में से मुझे 3 साल का ये सेटिस्फैक्टरी और गुड लाना पड़ेगा। और मैं कहां से लाऊंगा? या तो वो टीचर इंचार्जेस मुझे देंगे, या मेरे पास रिकॉर्ड होगा, या प्रिंसिपल वो सर्टिफाई करेगा वो पिछले 4 सालों वाला, क्योंकि वो मुझे वो बैकडेट से लाना पड़ेगा ना सारा। वो मैं कहां से लाऊंगा? वो प्रॉब्लम होने वाली है। हो सकता है कोई टीचर रिटायर हो गया हो, टीआईसी थे वो रिटायर हो गए तो वो अब है नहीं। जैसे हमारे कॉलेज में है, जैसे जब हुआ था लगा था तो मैं 2011 में आई गॉट परमानेंट, सो माय टीआईसी वाज देयर एंड ही रिटायर्ड एंड लास्ट ईयर ही एक्सपायर्ड, सो आई कैन नॉट गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम, सो देयर मे बी अ प्रॉब्लम। एंड नाउ यू सी दिस, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इसको ऐसा कर दिया कि इसमें मतलब आप देखोगे कि इतने इनडायरेक्ट तरीके हैं, अगर आप देखेंगे तो वो बोलोगे यहाँ पे मुझे बेनिफिट नहीं मिलते, लेकिन इट इज अपरेंट, द बेनिफिट सीम्स टू बी वेरी अपरेंट कि मिलने वाला है, लेकिन वो मिल नहीं पाएगा। नाउ दिस इज फॉर द फर्स्ट प्रमोशन। नाउ व्हाट इज द सेकंड प्रमोशन? फॉर सेकंड प्रमोशन दैट इज फ्रॉम एकेडमिक लेवल 11 टू एकेडमिक लेवल 12, जो ये आप पहले वाला हम जिसको 7,000 से 8,000 वाला मानते थे, वी हैव टू बी 5 years इन दैट। मतलब जो पहला प्रमोशन हमारा हुआ है उसमें 5 साल हमारे को होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो एडॉक एक्सपीरियंस है वो सेकंड स्टेज में काउंट नहीं होता। क्यों नहीं काउंट होता? वो सेकंड स्टेज में इसीलिए काउंट नहीं होता, मान लीजिए मैं 8 साल एडॉक रहा, ठीक है जी,
8 साल में एडॉक रहा, तो 8 साल में एडॉक रहा, तो जो यूनिवर्सिटी का कहना है, देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ इस चीज की, मैं आई एम नो अथॉरिटी इन द यूनिवर्सिटी हु इज सेइंग कि प्रमोशन ऐसे ही होगा। ये साथ में आप डिस्क्लेमर समझ लीजिए, व्हाट आई हैव डन विद द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, आई हैव इंटरप्रेटेड द यूजीसी रेगुलेशंस 2018, मैंने बड़ा डेप्थ में पढ़ा, 18 को 2010 को पढ़ा, और उसके बाद जो मुझे समझ आया, मेरी समझ से मैं आपको ये इंटरप्रिटेशन करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें मतलब ये नहीं है कि मतलब व्हाट आई एम सेइंग दैट इज द फाइनल वर्ड, बट you can also apply your own judgment and you can see that whether you agree with me or not, and you can have your own objections, we can have a discussion over it. But this is what I understand ki, by analyzing my UGC regulations and the past regulations, this is what I have interpreted. Now what you can see this that जो मैं बोल रहा था कि एडहॉक में जैसे मान लीजिए 8 साल में एडहॉक रहा, और जब मैंने पहला प्रमोशन लिया तो वो कहते हैं कि मान लीजिए पीएचडी था तो 4 साल होने चाहिए मेरे, और 4 साल वो मेरे सेकंड प्रमोशन में काउंट होने चाहिए। वो नहीं होता, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि देखिए सेकंड जो उनका कहना है कि आप जो बोल रहे हैं ना सेकंड फर्स्ट प्रमोशन उन्होंने दे दिया आपको, अब उसकी रिक्वायरमेंट है कि 5 years इन एकेडमिक लेवल 11 कि आपको 5 साल उसमें रहा होना चाहिए। अब आपको प्रमोट ही नहीं किया उन्होंने, पहला प्रमोशन हुआ आपका अभी हुआ जब आप परमानेंट हुए, परमानेंट होने से पहले तो प्रमोशन हो नहीं सकता एडॉक में। जब आप प्रमोशन हुए तो जिस डेट से आपको प्रमोशन, आप मतलब मान लीजिए कि मैं 2011 में हुआ परमानेंट, और 11 से मुझे 4 साल 2015 में पहला प्रमोशन हो जाना, जो मेरा एक्सपीरियंस था 11 में परमानेंट हुआ, और 2003 में मैं पहली बार एडॉक लगा था, तो मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो कायदे से तो मेरा अगर पीएचडी थी तो 2007 में मेरा पहला प्रमोशन हो जाना चाहिए था, 2007 में मेरा पहला प्रमोशन हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं तो एडहॉक था, मेरा प्रमोशन कैसे होता? तो इसीलिए पहला प्रमोशन मेरा कब होगा? 2011 में होगा, पहली डेट को ही हो जाएगा, मान लीजिए कि पहली डेट को ही हो जाएगा, क्योंकि अगर वो काउंट करते हैं। अब ये जो सेकंड प्रमोशन की कंडीशन है वो कहता है कि 5 years इन एकेडमिक लेवल 11, तो 5 साल मेरे कब से काउंट होंगे? जब मैं प्रमोट पहली बार हुआ था, और पहली बार प्रमोट में परमानेंट में हुआ, क्योंकि मैं एडहॉक में प्रमोट हो नहीं सकता। तो इसीलिए there are political bodies which keep on saying that this is, but there are certain practical problems, चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन ये मतलब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मतलब डोंट टेक मतलब इन द अदर सेंस, बट व्हाट आई एम सेइंग इज द टेक्निकल प्रॉब्लम इन द दीज रेगुलेशंस व्हिच क्रिएट दैट कि आपको 5 साल जब प्रमोट हो गए आप पहली बार, तो उसके बाद आपके 5 साल काउंट होंगे, और वो तो तभी होगा जब आप परमानेंट होंगे, इसलिए एडहॉक सेकंड स्टेज पे काउंट नहीं हो पाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, 2 रिफ्रेशर कोर्सेज। अब देखिए यहाँ पर 2 रिफ्रेशर कोर्सेज है, पहले हमें 1 चाहिए होता था, लेकिन कैश 2018 में हमें 2 रिफ्रेशर कोर्सेज चाहिए। अब इसका प्रमोशन देखिए क्राइटेरिया क्या है, फिर से वही है कि टीचर शुड गेट सेटिस्फैक्टरी और गुड ग्रेड इन एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट दैट इज अपार फॉर एटलीस्ट 4 out of last 5 years। पिछले 4 में से 5 सालों में वो एक सेटिस्फैक्टरी या गुड उसका जो है ना वो स्कोर होना चाहिए, ग्रेडिंग होनी चाहिए। और वो प्रमोशन जो है वो रिकमेंड कौन करेगा? स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी। इसका मतलब दोबारा से कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है, इट इज अ स्क्रीनिंग कमेटी फॉर द फर्स्ट 2 स्टेजेस, 6000 से 7000 में और 7000 से 8000 में। कैश 2018 में कोई भी वो नहीं है, ये स्क्रीन सिलेक्शन कमेटी नहीं है, स्क्रीनिंग कमेटी ही है। नाउ फॉर थर्ड प्रमोशन यू कैन सी दैट नाउ वी नीड ए पीएचडी। अर्लियर इन दी ओल्ड कैश 2010 में, साथ साथ बताता भी चल रहा हूँ, लास्ट में मैं कंपैरिजन भी करूंगा कि जो कैश 2010 में PhD was not mandatory for getting promotion to the associate professor, but now in CAS 2018 you cannot be promoted to the post of associate professor without PhD. So PhD has become mandatory. तो ये भी एक क्लॉज आएगा कि whether we should opt for CAS 2010 और CAS 2018। अगर आप PhD नहीं हैं उस असेसमेंट पीरियड में, तो आप CAS 2010 को ऑप्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पीएचडी ना होने का भी उसके बावजूद भी आप एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोट हो सकते हैं। आई विल टेल यू लेटर ऑन कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन कैश 2010 इन ऑल दीज स्टेजेस। अपार्ट फ्रॉम पीएचडी यू नीड टू हैव 1 रिफ्रेशर और एफडीपी। एक एफडीपी मतलब एक रिफ्रेशर कोर्स 2 वीक्स की एफडीपी या 2 वीक्स की एफडीपी के इक्विवेलेंट होता है, या एक वीक की है तो वो 2 हो जाएंगी, मतलब एक FDP 14 दिन की, that is equivalent to 2 FDPs of 2 weeks. Now again the promotion criteria is, since the requirement is that I have to be
they are in the in this 3 years in the academic level. देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है for third promotion the requirement is 3 years in academic level 12. तो पहले प्रमोशन आपका 4, 5 या 6 साल में मिलेगा डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर PhD or MPhil. Second promotion you will get if you have spent 5 years in the stage 1. Third promotion you will get when you have spent 3 years in the stage 2 or academic level 12. आप अगर 3 साल रहे हैं और आपके पास PhD है और आपने एक रिफ्रेशर कोर्स कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं टू गेट प्रमोटेड टू द एसोसिएट प्रोफेसर एज पर कैश 2018. एंड along with that there is a how it will be done. You have to get satisfactory or good grade in at least 2 of the last 3 years of the assessment period and the selection committee should recommend it. तो यहाँ पर अब स्क्रीनिंग कमेटी नहीं आएगी, यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी आएगी. अच्छा, आप सबको पता है कि प्रोफेसरशिप्स आ गई हैं, तो इसमें क्या हाउ यू कैन बिकम प्रोफेसर, थोड़ा सा मतलब आयरनिकल लगेगा कि हम प्रोफेसर की बात कर रहे हैं यहाँ पर. अभी तो हम लोगों का एसोसिएट क्या मतलब सेकंड स्टेज का ही प्रमोशन नहीं हुआ है एंड वी आर सेइंग कि भाई प्रोफेसर का भी तो देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है कि यू हैव टू हैव 3 years in as associate professor you have spent 3 years and you have done obviously PhD and there are 10 research publications in peer reviewed or UGC listed journals. अब वो केयर लिस्ट हो गई है and minimum of 110 research score as per appendix जो उन्होंने 110 पॉइंट का जो रिसर्च क्राइटेरिया दिया हुआ है वो. एंड अगेन फॉर आउट ऑफ 3 यू शुड हैव 2 सालों में आपकी सेटिस्फैक्टरी और गुड रिपोर्ट होनी चाहिए. और जो सिलेक्शन कमेटी है वो फिर से आपको वो यू हैव टू गो थ्रू द सिलेक्शन कमेटी टू बिकम द प्रोफेसर. अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो अपार की हम बात कर रहे हैं एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, ये कैसे बनेगी, ये मैंने जैसे आपको बताया, ये हमारा TIC कॉलेजेस में TIC यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसके थ्रू रूट होगी. मतलब ये जो हमारे TIC को ये बताना पड़ेगा कि ये सेटिस्फैक्टरी है या गुड परफॉर्मेंस है जो भी है, एंड हमें अपने TIC से साइन कराने के बाद ही ये आगे हम कॉलेज में सबमिट करेंगे. तो वो प्रिंसिपल फिर आप बाद में अप्रूव करेंगे एंड देन इट विल बी प्लेस्ड बिफोर द सिलेक्शन कमिटी. Now, this is what the assessment criteria or methodology which has been given कि जिन्होंने बोला कि गुड कब होगा और सेटिस्फैक्टरी कब होगा. तो आपका इसमें देखिए 2 एक्टिविटीज हैं. एक तो टीचिंग की एक्टिविटीज हैं, नंबर ऑफ क्लासेस आपने कितनी पढ़ाई हैं, जितनी नंबर ऑफ क्लासेस पढ़ाई हैं और टोटल क्लासेस जितनी मिली थी उसका परसेंटेज निकाल लेंगे. मान लीजिए मुझे 70 लेक्चर बनते थे मेरे पूरे साल में और मैंने 60 लिए, तो 60/70 जो भी मेरा परसेंटेज बना 80 से अबव बना तो मेरा गुड आएगा, मेरा क्राइटेरिया आएगा गुड. अगर 80 से 70 के बीच में लिया तो सेटिस्फैक्टरी और 70 से नीचे जाएगा तो नॉट सेटिस्फैक्टरी. अगर आपका नॉट सेटिस्फैक्टरी है, मान वो यही है कि अगर पिछले 4 सालों में या 5 सालों में या 6 सालों में जो पहला वाला था, अगर आपका TIC हर साल का TIC ये बताता है कि इसने क्लासेस नहीं ली, अब ये बड़ा डिबेटेबल होता है मतलब कि भाई वो कैसे कह सकते हैं, या जो भी है, अगर आप बोलेंगे कि कुछ भी था वॉट एवर द रीजन द क्लासेस नहीं ली, तो अगर 70% से नीचे है तो वो नॉट सेटिस्फैक्टरी लिख सकता है, कैन से. बट अगेन वो डिबेटेबल इशू है कि वो कैसे लिखेंगे या क्या लिखेंगे. बट लार्जली ऐसा कोई करता नहीं है हमारे टीचिंग कम्युनिटी में, जितने भी TICs होते हैं दे जो भी है मतलब 80% से अबव आप गुड, 80 से 70% अबव सेटिस्फैक्टरी. तो पिछले 4 में से 3 साल आउट ऑफ द लास्ट 4 years एटलीस्ट 3, 5 में से 4 या 6 में से 5, 1 साल का मतलब एक छूट है, रिलैक्सेशन है कि उसमें नॉट सेटिस्फैक्टरी हो गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्क्रीनिंग में. सेकंड है आप किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं. तो ये बड़ी सारी एक्टिविटी ली है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एग्जामिनेशन की हैं, और जो करियर काउंसलिंग की है, NCC NSS कल्चरल एक्टिविटीज हैं, सेमिनार किया, कॉन्फ्रेंसेस कराई, उसमें आप कितनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे पर ईयर. आप अगर 3 या 3 से ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे तो अच्छा माना जाएगा, 1 से 2 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे तो सेटिस्फैक्टरी माना जाएगा, और किसी भी एक्टिविटी में कहीं इन्वॉल्व नहीं रहे तो नॉट सेटिस्फैक्टरी माना जाएगा. तो आप वो ये बोल रहा है कि आपको ये सेटिस्फैक्टरी क्राइटेरिया जो है और गुड वाला क्राइटेरिया जो है वो पिछले 1 ही साल का एग्जम्पशन मिल सकता है नॉट सेटिस्फैक्टरी में, बाकी में आपको गुड या सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए. अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये क्या कहता है, देखिए कि गुड इन टीचिंग एंड सेटिस्फैक्टरी और गुड इन एक्टिविटी एट सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2.
हम उसे गुड कब मानेंगे? जब गुड टीचिंग में होगा एंड सेटिस्फैक्ट्री या गुड होगा एक्टिविटी 2 में, तब हम उसको गुड मानेंगे। अगर सेटिस्फैक्ट्री है टीचिंग में और गुड और सेटिस्फैक्ट्री इन एक्टिविटी 2, तो हम उसको सेटिस्फैक्ट्री मानेंगे। तो इसका मतलब टीचिंग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, उसमें आपको क्लासेस लेना प्राइमरी, यू हैव टू सी इट कि वो क्लासेस मेरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो उसमें गुड होना बड़ा जरूरी है। इवन इफ यू आर सेटिस्फैक्ट्री इन दी एक्टिविटीज में, आपने चाहे बेशक कम पार्टिसिपेट किया, सेटिस्फैक्ट्री अगर रहा एक दो में किया है तो तब भी वो चल जाएगा। नॉट सेटिस्फैक्ट्री होगा कि जब आप मतलब आपने किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, इवन आप पढ़ा भी रहे हैं और किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, यू आर अ वेरी गुड टीचर, मतलब दिस इज वेरी आयरनिकल सिचुएशन आल्सो, इफ यू आर अ वेरी गुड टीचर, यू आर वेरी रेगुलर इन योर क्लासेस, देयर आर सो मेनी टीचर्स which are very regular, they take 100% classes, but they do not take part in any other activity. And if they do so, if they don't take part in any activity, then they will come under not satisfactory category. Now you have to see this, that important thing is that for the purpose of assessing, अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या कैस 2018 में चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव और या मेरी स्टडी लीव, ये सबका क्या है, ये क्या काउंट होंगे या नहीं होंगे? देखो कहीं पर भी ये डायरेक्टली नहीं लिखते हैं ये, और बड़ा इम्प्लाइड कर देते हैं उसको। अब आप ये देखिए क्या नोट, एक नोट बना के दे दिया, क्या नोट है वो, कि फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग द ग्रेडिंग ऑफ एक्टिविटी एट सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 1 है टीचिंग का, सीरियल नंबर 2 है आपकी कॉलेज में एक्टिविटीज का। ऑल सच पीरियड्स ऑफ ड्यूरेशन which have been spent by the teacher on different kinds of paid leaves such as maternity leave, child care leave, study leave, medical leave, extraordinary leave and deputation। कई लोग डेपुटेशन पे चले जाते हैं बाहर, किसी दूसरी उसमें किसी जैसे यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से चले गए यूनिवर्सिटी में या किसी दूसरी चले गए फिर वापस आ गए। shall be excluded from grading assessment, उस पीरियड को वो एक्सक्लूड कर रहा है असेसमेंट के लिए। नाउ इसका मतलब देखिए ये है कि पिछले 5 साल में आप 1 साल छुट्टी पे रहे, चाइल्ड केयर पे रहे या मेडिकल पे रहे, तो वो आपका टीआईसी उस 1 साल की छुट्टी पे आपको नॉट सेटिस्फैक्ट्री नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, वो उस पीरियड को एक्सक्लूड कर रहा है। सो द टीचर शैल बी असेस्ड फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन एंड same shall be extrapolated for the entire period of assessment to arrive at the grading of the teacher। वो उस पीरियड को रिमेनिंग पीरियड पे आपको असेस करेंगे। तो रिमेनिंग पीरियड जब 5 से 4 करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये पीरियड वैसे ही ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गया। हालांकि अगर 1 साल तक का, अगर मैं बोलूं कि अगर 1 साल तक की छुट्टी, अगर इसका इंटरप्रिटेशन मैं निकालूं, अगर 1 साल तक की छुट्टी है तो ठीक है, आप मुझे मत करो, लेकिन 5 साल में आप मुझे 1 साल मेरा एक्सक्लूड हो गया, तो 4 साल का तो मेरा फुलफिल हो गया। इन दैट केस मेरा मतलब तो फिर मेरे को मेरे एक्सटेंशन में जो मेरा पीरियड है जो काउंट होगा प्रमोशन के लिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आगे देखो ये बोलता था, टीचर ऑन सच लीव्स और डेपुटेशन एज मेंशन अबव शैल नॉट बी पुट टू एनी डिसएडवांटेज फॉर प्रमोशन अंडर कैश ड्यू टू हिज और एब्सेंस फ्रॉम हिज और हर टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एक तरह से ये बोल रहा है कि वो मतलब वो डिसएडवांटेज नहीं होगा, कि जो हम कहते हैं कि 5 साल होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है कि ही शुड बी 5 years इन एकेडमिक लेवल 1। वो ये नहीं कहता कि वो क्या आप एकेडमिक लेवल 1 में नहीं थे जब आपने ये छुट्टी ली थी, आप थे, तो वो कंडीशन फुलफिल होती है। लेकिन यहाँ पर वो फंसाने की कोशिश कर रहा है कि वो पीरियड को एक्सक्लूड कर देगा असेसमेंट में। तो मेरे हिसाब से अगर 1 साल से पीरियड ज्यादा एक्सक्लूड हो जाएगा, आपका 1 साल से ज्यादा का हो जाएगा, तो वो पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। 1 साल तक का है तो वो, क्योंकि 5 से 4 और 4 से 3 और 3 से 2 में जो बेनिफिट मिल रहा है दैट यू कैन टेक। तो अगर वो एक्सटेंड करता है आपको, तो आपको वो पीरियड असेसमेंट ग्रेडिंग चाहिए ना, तो ग्रेडिंग आपकी कब करेगा? सेटिस्फैक्ट्री वो हर साल करेगा। आपको 3 सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे। अब आप देख लो 3 सर्टिफिकेट कैसे लगाओगे। अगर 4 में से 3 साल का लगाना है तो आपको खुद दिख जाएगा, जब आप आपका जो टीआईसी बोलेगा ये 1 साल कंप्लीट हो गया, तब आप दे सकते हो, नहीं तो वो मतलब वो पीरियड काउंट नहीं होगा। तो ये मैंने जैसे बताया कि इसमें कैसे होगा। आप अपना सबसे पहले, अच्छा एक चीज मैं आपको एक बता दूं कि गेटिंग प्रमोशन, मैंने बड़े मतलब इतने सारे ग्रुप्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। एक तो जो मुझे लगता है ना, मतलब आई एम वेरी ब्लंट इन दिस, कि ये क्यों नहीं हो पा रहे प्रमोशंस, इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, हमारी लीडरशिप भी जिम्मेदार है, हम लोग सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये प्रमोशन कराना हमारा काम है। मतलब हमें खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा।
हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी पे भी, अपने कॉलेज प्रशासन को भी बोलना पड़ेगा और उनको आगे मूव करना पड़ेगा। वी कैन नॉट वेट कि कोई हमारे को आके बोलेगा और हम तब करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि जो कैश 2018 के हिसाब से जो प्रमोशन का जो फॉर्म है, हम जो कहते हैं जो प्रमोशन फॉर्म है, देखिए ऑप्शन फॉर्म तो आ गया है, प्रमोशन फॉर्म नहीं आया है। तो कैश 2010 का तो प्रमोशन फॉर्म है, वो पड़ा हुआ है, वो हम क्यों नहीं पुश करते कहीं पर भी? क्योंकि यूनिवर्सिटी पेपर पे कहीं नहीं कहती कि हमने प्रमोशन बंद किया हुआ है। तो कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि प्रमोशन शुरू भी हो, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस, बट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी विल फोकस ऑन दैट कि हमें क्या करना है। क्योंकि टीचर्स के प्रमोशन नहीं होंगे, टर्मोइल बना रहेगा, तभी लोग परेशान रहेंगे, तो लोगों को, नेता लोगों को पूछेंगे, नहीं तो अगर सब कुछ शांति से चल रहा है तो कौन पूछेगा? तो मेरा मानना यह है कि हमें इसमें करना क्या है, शांति से हम सोचेंगे इस पे बैठ के, और वी कैन डू इट इन अ पॉजिटिव वे कि हम कैसे सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसका कैश 2018 में, ये 3 स्टेप प्रोसेस होगा कि कॉलेज का या जो भी टीचर होगा अपने देखिए एचओडी या टीचर इंचार्ज को सबमिट करेगा वो एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट। जब आपका 1 साल हो जाएगा, आप प्रमोशन हो गया, आप अपनी साइन करा के रख लीजिएगा कि सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, सर्टिफाई करा लीजिएगा और आगे अपने पास रखते चले जाइए। प्रिंसिपल को आप सबमिट करते चले जाइए, ऑफिस में सबमिट कर दीजिए, एक कॉपी अपने पास रख लीजिए। Second, after the completion of the required years of experience promotion, the fulfillment of other requirement indicate the teacher shall submit an application for promotion under CAS। तो वो जब, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कोई ऑप्शन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, कोई अरे मत करो ऑप्शन फॉर्म मत भरो, क्या होगा? वो आपको जब डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से नहीं देगा फिर वो, क्योंकि उसने बोला हुआ है कैश 2021 के बाद देखना क्या प्रॉब्लम आने वाली है। 18 जुलाई 2021 जब ये खत्म हो जाएगी ऑप्शन की जो स्कीम है, उसके बाद वो जैसे अभी लोग रोते हैं ना कि हमारा जी ये डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से नहीं किया इन्होंने कर दिया डेट ऑफ, वो इसलिए करते हैं क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन में दिया हुआ है कि आप जो है 3 महीने के, जब आप विजुअलाइज कर लें, आपको अपना खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा प्रमोशन कब ड्यू होने वाला है। जैसे ड्यू होने वाला है उसके 3 महीने के भीतर आप विद इन 3 मंथ्स आप अप्लाई कर दीजिए। आपने 3 महीने अप्लाई कर दिया तो आपकी खत्म होगी कहानी, आप अपनी रिसीविंग लेके रख दीजिए कॉलेज में। अब उसके बाद जो है 6 महीने के अंदर ये कहता है, और यूजीसी रेगुलेशन 2018 कहता है कि विद इन 6 मंथ्स द यूनिवर्सिटी हैज टू गिव द सिलेक्शन कमेटी करना पड़ेगा या स्क्रीनिंग कमेटी करना पड़ेगा और प्रमोशन देना पड़ेगा। अब हम ही नहीं देंगे ऑप्शन उनको, हम ही प्रमोशन फॉर्म नहीं देंगे, जब हम ही अपना क्लेम नहीं करेंगे आपको कौन देगा? कोई नहीं देगा। कुछ कॉलेजेस में यह है कि उन्होंने दिया भी, उसके बाद भी कॉलेजेस ने आगे नहीं भेजा। कुछ में यह है कि टीचर्स ने दिया ही नहीं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो आप अपना दावा जरूर ठोकें, अपना क्लेम कम से कम कॉलेज को, देखिए आपको चाहिए आप कॉलेज को अपने टाइमली सबमिट करा दें, अपनी रिसीविंग ले लें। कॉलेज को चाहिए कि यूनिवर्सिटी को भेज दे वो टाइमली। आगे यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है, लेट देम डू इट, लेट उनको बोलने दो, उनको ऑब्जेक्शन लगाने दो फाइल पे, तभी तो पता चलेगा। मेरी एक बार ये बात भी हुई थी यूनिवर्सिटी में, तो व्हाट द वाइस चांसलर वाज सेइंग कि मैंने किसी के प्रमोशन नहीं रोके हैं। मैंने कहा ये लोग परेशान हैं, आप इनका प्रमोशन क्यों नहीं रखते हैं? कहते जी मेरी फाइल पूछ लो कि मेरे पास किसकी फाइल आई है, किसी की फाइल नहीं आई हुई है। कहते नीचे से लेके ये जो नीचे ये जो सारे क्लर्क हैं यही ऑब्जेक्शन लगा के बैठ जाते हैं। अब मैं उन ऑब्जेक्शंस को कैसे ओवर रूल करूं? कहते हैं आधे तो फॉर्म इनकम्प्लीट है, आधे क्राइटेरिया नहीं पता, दूसरा जो यूजीसी की रेगुलेशन है उसके हिसाब से नहीं है, तो हाउ कैन आई वेव ऑफ? नाउ दैट इज डिफरेंट, आई एम नॉट सेइंग, बट ही डेफिनेटली ही शुड टेक इनिशिएटिव एंड ही शुड डायरेक्ट, मैंने बोला कि आपको डायरेक्ट करना चाहिए इन लोगों को कि भाई आप ये सब ना करें। तो ही हैज अ डिफरेंट एप्रीहेंशंस, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तीसरा ये होगा कि जो हमारे जो अगर कैश प्रमोशन अगर हम फुलफिल करते हैं तो मिल जाएगा। इस तरह से हमारा कैश 2018 में प्रमोशन होगा। तो हमें ये क्या बात समझ में आई? हमें ये समझ आया कि अगर मुझे कैश 2018 ऑप्ट करना है तो एपीआई की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, और मैं बैकडेट से भी कैश 2018 में ऑप्ट कर सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, मुझे ये जो मेरी ये ग्रेडिंग है इसको मुझे कराना पड़ेगा। वो मैं ग्रेडिंग कहां से लाऊंगा? अगर मेरे टीचर इंचार्जेस वो ग्रेडिंग, अब मुझे लगता है कि वो इतना पुराना है, वो आप अगर कैश 2010 को देखेंगे रिलैक्स में तो आपको लगेगा कि वो बेटर है, वो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए आज से या कैश 2008 जब 2018 आ गया उसके बाद से हम कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और पीछे वाला मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको इंडिविजुअल केसेस भी हम ले सकते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सबके बड़े बड़े मतलब पेक्युलर प्रॉब्लम्स हैं, तो वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। बट बिफोर दैट यू नीड टू हैव ए योर आइडिया अबाउट कि व्हाट एक्चुअली इज दिस। सो कैश 2018 में मैं पीछे से भी ले सकता हूँ, कैश 2010 जब से इंप्लीमेंट हुआ उसके बाद से मैं प्रमोशन कैश 2018 में ले सकता हूँ, लेकिन मुझे ये फुलफिल करनी पड़ेगी कंडीशन कि वो मुझे ग्रेडिंग करानी पड़ेगी 5 में से 4 और 4 में से 3 वाली जो है,
नाउ वी हैव टू कम टू, नाउ वी हैव टू सी कि अगर मैं कैश 2010 ऑप्ट करता हूं which is being relaxed by UGC regulation 2018, तो क्या होगा, what will happen? देखिए फर्स्ट प्रमोशन जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर टू सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर स्केल जिसको बोलते हैं, दैट इज 6000 to 7000 वाला था, तो वही वाली कंडीशन है, 4 5 6 साल वाली जो पीएचडी एमफिल है वो सेम है। अब 1 ओरिएंटेशन एंड 1 रिफ्रेशर कोर्स, मैंने स्टार लगाए हुए सारे रिफ्रेशर कोर्स पे, इसलिए लगाया हुआ है कि बिकॉज अप टू 31 दिसंबर 2018, अच्छा बहुत लोगों का ये होता था कि भाई मेरे उस असेसमेंट पीरियड में मैंने ओरिएंटेशन नहीं किया, मैंने रिफ्रेशर नहीं किया, तो अभी ये इन्होंने रिलैक्स कर दिया है, 2 चीजें रिलैक्स की है इन्होंने, एक तो एपीआई स्कोर रिलैक्स कर दिया है, दूसरा आपका ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर की रिक्वायरमेंट रिलैक्स कर दी है अप टू 31 दिसंबर 2018। तो अगर किसी का उस पीरियड में असेसमेंट पीरियड में नहीं है रिलैक्स ये ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ what will be the promotion? The promotion criteria is, now this you have to see, this has been changed now and it has been relaxed in 2000 UGC regulation 2018। तो UGC regulation 2018 कैश 2010 में रिलैक्सेशन दे रहा है, वो क्या दे रहा है कि इफ he gets relaxed API, रिलैक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो अब ओरिजिनल मतलब आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि वो API स्कोर नहीं चाहिए जो पहले चाहिए था। तो कितना चाहिए, देखिए पहले कैटेगरी 1 2 3 हुआ करती थी, टीचिंग पहली वाली जो होती थी कैटेगरी 1 उसको टीचिंग की बोलते थे, कैटेगरी 2 जो बोलते थे हम एक्टिविटीज के लिए बोलते थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज कमिटीज ले ली, और कैटेगरी 3 जो होती थी हमारी रिसर्च की होती थी। और इन तीनों कैटेगरीज में हमें इंडिविजुअल स्कोर चाहिए होता था। उससे क्या होता था कि जिन लोगों ने रिसर्च पेपर्स वगैरह नहीं लिखे थे उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि भाई हम कैटेगरी, यही रीजन था कि बड़ा एक बॉटलनेक बना रहा और हम कैश 2010 में प्रमोशंस नहीं हो पाए। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी ये रिलैक्सेशन हो गई और उन्होंने बोला कि कैटेगरी 1 में तो कोई स्कोर नहीं चाहिए, क्योंकि सभी मान रहे हैं कि टीचिंग तो यार टीचर सब करते ही हैं, तो इसलिए देयर इज नो पॉइंट, नो नीड टू पुट ऑन होल्ड द प्रमोशन बिकॉज ऑफ टीचिंग। जो कैटेगरी 2 और 3 है उन्होंने उसको मर्ज कर दिया कलेक्टिवली, मतलब उन दोनों को टेकन टुगेदर, उनका एक स्कोर बता दिया। और इस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आपको एपीआई स्कोर चाहिए 20। नाउ 20 पहले तो पर ईयर का होता था, अब 20 चाहिए इन दी असेसमेंट पीरियड। अब आप देखिए असेसमेंट पीरियड क्या है आपका, 4 साल 5 साल या 6 साल डिपेंडिंग ऑन पीएचडी एमफिल और पीजी, ये आपका असेसमेंट पीरियड है। इन पूरे असेसमेंट पीरियड में आपको 20 पॉइंट चाहिए और आपको इंडिविजुअली नहीं चाहिए, यू डोंट नीड इट इंडिविजुअली इन कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही फायदेमंद है ये चीज, क्योंकि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में कलेक्टिवली कर दिया। अगर मान लो मेरा कैटेगरी 2 3 में 0 है, मेरा रिसर्च पब्लिकेशन 0 है, तो मैं कैटेगरी 2 में स्कोर कर लूंगा। अब आप सोचोगे कि मेरा 20 पॉइंट कैसे बनेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको कि 20 पॉइंट आपके कैसे बनेंगे। कैटेगरी 2 में हाउ एनीबडी कैन स्कोर 20 points in the this 6000 to 7000 and again the screening committee will be there। देखिए वहां पर क्या था, वहां पर आपको कैश 2018 में इफ यू वांट टू टेक इट रेट्रोस्पेक्टिव, आप बैक डेट से आप लेना चाहते हैं कैश 2018 को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको वो ग्रेडिंग चाहिए, वो अपार वाली ग्रेडिंग चाहिए, 4 साल की मतलब 4 में से 3 साल, 5 में से 4 और 6 में से 5 वाली ग्रेडिंग चाहिए आपको, और हर साल की गुड या सेटिस्फैक्ट्री वाली। जहां पर आपको असेसमेंट पीरियड में आपको सिर्फ 20 पॉइंट्स चाहिए इन कैटेगरी 2 एंड 3। अब वो 20 पॉइंट्स कैसे बनते हैं मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूं पहले। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये कैटेगरी 2, ये आपको, ये उन्होंने जब ये दिया था, ये इसमें बोला था कि जितने एक्चुअल आवर्स स्पेंट हैं आपके पर एकेडमिक ईयर उसको डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। तो आपके जो ए कैटेगरी है, क्योंकि कैटेगरी 2 में 3 सब कैटेगरी हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में 3 कैटेगरी हैं। अब ये पहले होता था कि पर ईयर चाहिए होता था। अब आप सोचिए आपका 4 साल है, अब 4 साल में आप कैटेगरी ए ले लीजिए, एक्चुअल आवर्स स्पेंट पर एकेडमिक ईयर, आप 1 साल में आप बता सकते हैं ना कि आपने कितनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है। सभी लोगों ने किसी ना किसी कमेटी में किया होगा, अरे नहीं किया तो वो मतलब कहीं ना को कन्वीनर या कुछ मेंबर कुछ तो रहे होंगे, वो भी माना जाएगा इसमें। ये कहीं नहीं करा कि कन्वीनर है या को कन्वीनर है या वही होना चाहिए। आपने किसी सेमिनार में कोई कराया है, कोई वर्कशॉप कराई है, कुछ भी एनसीसी कोई भी आपने कमेटियां कराई हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में आपने कोई भी कुछ कोऑर्डिनेट, देखिए ना वो कह रहा है कि थ्रू पार्टिसिपेशन इन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आप कितने घंटे दिए होंगे।
आप एक साल में आप इतना तो बोल सकते हैं कि भाई मेरे एक साल में मान लीजिए मैंने 100 घंटे दिए होंगे, 100 घंटे दिए होंगे, डिसिप्लिन कमेटी में थे, किसी में भी थे, 100 घंटे दिए होंगे। अगले साल आपने अगले ईयर में फिर 100 घंटे दिए होंगे। आपके 200 घंटे ही डिवाइड बाय 10 करोगे तो 220 पॉइंट हो गए आपके। मतलब जितने घंटे होते हैं उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे स्कोर आ जाता है। तो 4 साल में 5 साल में आपकी कमिटीज के 200 घंटे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। आप अच्छा, इसमें इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है कि कितने घंटे क्या हुए। यू क्लेम कि भाई आप दिखता ही है, ऐसा कहीं वो तो कहीं बायोमेट्रिक तो लगा नहीं हुआ था, तो आपका प्रिंसिपल हैज टू वेरीफाई इट। और आप अगर कहीं मेंबर थे कमेटी में, आप कन्वीनर नहीं थे, आप अपने कन्वीनर से वेरीफाई कराइए और प्रिंसिपल को दीजिए। तो प्रिंसिपल वो वेरीफाई करके, भाई देखिए प्रिंसिपल को भी रिकॉर्ड चाहिए कि वो है कि नहीं है, वो सब मतलब वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो वो ये वेरिफिकेशन करा लेंगे उससे, जो आपके जो टीआईसी जो ये जो है कन्वीनर है, एंड दैट कैन पॉइंट आपके बन सकते हैं आराम से। तो 20 पॉइंट तो कोई बड़ी बात ही नहीं है इसमें कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 पे तो मैं जा ही नहीं रहा। मतलब कैटेगरी सी भी देखिए, प्रोफेशनल ये सेमिनार वगैरह कराने की ये सब है, तो यू नीड 200 आवर्स कंट्रीब्यूशन इन स्टेज 1, स्टेज 1, ठीक है। 20 पॉइंट चाहिए कलेक्टिवली। तो कैटेगरी 3 भूल जाइए, 0 है। आपके आसानी से कैटेगरी 2 में 20 पॉइंट्स बन सकते हैं। सेकंड स्टेज में अगर आप कैश 2010 में ही आप अगर सेकंड स्टेज कर रहे हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो आपको 5 साल होने चाहिए और आपको एक रिफ्रेशर या एफडीपी जो भी था। देखिए वहां पर 2 है, नए वाले में कैश 2018 में 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है। लेकिन फिर से स्टार लगा हुआ है, वी डोंट नीड इट एट दिस पॉइंट। अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं 31 दिसंबर 2018 से, तो ये कंडीशन नहीं है कि आपका उस पीरियड में ही ये फॉल कर रहा है या आपने किया भी है। नहीं भी किया तब भी कोई बात नहीं है। अब आप उसका अब क्या क्राइटेरिया है प्रमोशन का कि यू नीड टू हैव दैट रिलैक्स्ड एपीआई स्कोर ऑफ 50 अगेन कलेक्टिवली इन कैटेगरी 2 and 3। जो 20 था अब वो 50 हो गया। देखिए साल भी तो बढ़ गए, 5 साल हो गए। तो 5 साल हो गए तो 10-10 पॉइंट अगर आपके 5 सालों में है, और 10 पॉइंट का मतलब है आपने 100 घंटे काम किया है। 100 घंटे तो काम हो गया होगा, आराम से हो जाएगा, किसी भी कमेटी में काम किया है। तो इवन इफ यू आर, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कैटेगरी 3 में किसी का कुछ भी नहीं है, तब भी कैटेगरी 2 में यू कैन स्कोर इजीली 50 पॉइंट्स। एंड दिस इज व्हाट यू कैन गिव स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी में। आप उसको जो मतलब सिलेक्शन कमेटी नहीं है, दिस यू कैन गेट इट। फॉर थर्ड प्रमोशन यू नीड 3 years इन स्टेज 3। सेम था उसमें भी, कैश 2018 में भी यही था। लेकिन अब एक चीज है, अब नाउ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अब देखिए यहाँ पर कैश 2010 में पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट यू नीड टू सी इज दैट वी डोंट नीड टू बी पीएचडी, लेकिन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 publications इन द एंटायर पीरियड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। 12 साल आपके अगर हो गए हैं तो उसमें आपकी 3 publications होनी चाहिए। ये असेसमेंट पीरियड नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है आपके पूरे एंटायर करियर में पीछे जब आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, जब आप अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबल आप वो हो गए हैं, उस डेट में पिछले चले जाइए, आपके 3 publications होनी चाहिए। However, in case of college teachers, an exemption of 1 publication will be given to MPhil, और अगर किसी ने MPhil की हुई है तो उसको 2 ही चाहिए। And an exemption of 2 publications will be given to PhD holder। अगर आप PhD हैं और कॉलेज के टीचर हैं तो आपको 2 की एग्जेम्पशन मिलेगी, मतलब आपको एक ही पब्लिकेशन चाहिए। तो आपको 12 सालों में एक ही पब्लिकेशन चाहिए, आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं बिना पीएचडी के कैश 2010 में ऑप्ट करते हैं तो। एक रिफ्रेशर कोर्स चाहिए, अगेन स्टार लगाया हुआ है, इट हैज बीन डिस्पेंस्ड विद till 31st December 2018। और what is the API score which is being required? You can see again 45. Now in the first it was 20, in the second stage it was 50, and now it is 45 क्योंकि 3 साल हो गए, साल भी कम हो गए तो 45 कर दिया again collectively 1 or 2 or 3 में। And but now here it will be the selection committee। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी है, यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी होगी जैसा होती है एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए। फोर्थ प्रमोशन वही प्रोफेसर वाला है, जाने के लिए 3 साल चाहिए आपको स्टेज 4 में, और मिनिमम ऑफ 5 पब्लिकेशन चाहिए सिंस द पीरियड दैट द टीचर इज प्लेस्ड इन स्टेज 3। जब से आप स्टेज 3 में आए हो, अब रिक्रूटमेंट से नहीं। देखिए वो पब्लिकेशन चाहिए थी आपको, 1 पब्लिकेशन चाहिए थी या 3 पब्लिकेशन चाहिए थे पिछले 12 साल में। यहाँ पे आपको बोल रहा है 5 पब्लिकेशन चाहिए जब आप स्टेज 3 से काउंट करेंगे। तो ये तो प्रोफेसर के लिए, मतलब कॉलेज प्रोफेसर्स के लिए है। और जो 5th प्रमोशन एक है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए ही है, कॉलेज टीचर्स के लिए नहीं है। तो इसमें क्या स्कोर चाहिए आपको, इसमें वही कलेक्टिवली 2nd और 3 का स्कोर चाहिए 60।
60 का चाहिए। ये इसलिए बोला हुआ है क्योंकि इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बढ़ा दिया हमने 3 साल में 60 कर दिया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पेपर्स भी छपे होंगे। और ऑब्वियसली देखो प्रोफेसर बनना है तो पेपर तो फिर छापने पड़ेंगे, नहीं तो ये बात कुछ मतलब विल नॉट सिंक विद दैट। सो इन द असेसमेंट पीरियड, एंड उसमें भी सिलेक्शन कमेटी होगी। सिलेक्शन कमेटी आपकी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में बनने में है, उससे पहले स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी है। नाउ ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जहां मैंने स्टार लगाया था, नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्रेशन एंड ओरिएंटेशन फॉर एलिजिबिलिटी अप टू 31 दिसंबर 2018। ठीक है जी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सेकंड पॉइंट है कि ये जो आपने देखा रिलैक्सेशन इन एपीआई जो दे रहे हैं अंडर कैश 2010 एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018, जो कि 20 पॉइंट, 50 पॉइंट और 45 पॉइंट जो हमने देखे हैं, जो दिए गए हैं, या 60 पॉइंट एट प्रोफेसर, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमको यूजीसी रेगुलेशन 2018 में मिल रहे हैं कैश 2010 के। लेकिन ये कब तक है? अप टू 18 जुलाई 2018। और देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एलिजिबल होते हैं 18 जुलाई 2018 के बाद और आप कैश 2010 ऑप्ट करना चाह रहे हैं अभी भी, तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी एपीआई की। दिस इज अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग एलिजिबल आफ्टर 18 जुलाई 2018 एंड यू वांट टू, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब पहली बार जब मैंने बात करी थी ऑप्शन की, तो इन्होंने 6.3 क्लॉज में दिया था ना कि अप टू 31 ये 18 जुलाई 2021 तक, 18 जुलाई 2021 तक हमारे पास ऑप्शन है हम कैश 2010 में लेना चाहें। लेकिन कौन लेगा कैश 2010 में 18 जुलाई 2018 के बाद, जब वो रिलैक्सेशन ही खत्म कर दी है एपीआई की? तो एक तरह से एक हाथ से दिया है, दूसरे हाथ से ले लिया है। तो ये हमें टीचर्स को प्रॉब्लम यही है कि सारे टीचर्स को देखिए वो सबकी इंटरप्रिटेशन सेम नहीं हो सकती। सारे लोग ये स्कैटर्ड है इतने क्लॉजेस कि वो पढ़ना बड़ा मुश्किल है और उनको समझना कोहेरेंट तरीके से एक वन थीम, ड्राइंग वन थीम इज वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई हैव हाइलाइटेड दिस दैट रिलैक्सेशन इन एपीआई स्कोर, तो वो उसका मीनिंगलेस हो जाता है वो कि हम 18 जुलाई 2018 के बाद जो 3 साल का हमें विंडो दिया है कि हम 2010 को भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर हमारी एलिजिबिलिटी 2000 उसके बाद हो रही है, वो कहता है ना शॉर्टली फॉलिंग। तो शॉर्टली फॉलिंग का मतलब है कि 18 जुलाई 2018 को आया और कोई यार अगले महीने हो गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा उससे, या 2 महीने बाद हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके पॉइंट्स में कोई जो बनने थे वो पॉइंट्स बन चुके हैं। तो इन दैट केस इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कैश 2010 जो रिलैक्सेशन है एपीआई की, तो तभी आप कैश 2010 तभी भरें जब आप 18 जुलाई 2018 से पहले आपकी एलिजिबिलिटी बनती हो। आप 18 जुलाई 2018 को एलिजिबल हो रहे हैं उसके बाद हो रहे हैं तो यू गो फॉर कैश 2018 देन, डोंट गो फॉर कैश 2010। एंड this is the third point, as per the relaxation there shall be no minimum API score requirement for category 2 and 3 individually, as I have told you, and the scores will be taken collectively। दोनों को साथ लेके, जो 20 वाला था या 50 वाला था या 45 वाला था या 60 वाला था, वो कैटेगरी 2 और 3 को मिलाकर है, वो अकेला नहीं है वो। Now this is what you can see this is what 20 per assessment period। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे को 20 पॉइंट जो है पर ईयर चाहिए, नहीं, हमें पर ईयर नहीं चाहिए। वी नीड इट ओनली इन द असेसमेंट पीरियड। असेसमेंट ईयर किसी का 5 साल था, किसी का 4 साल था, मतलब अलग अलग स्टेजेस में। जैसे हमारा पहली वाली स्टेज में वो 4, 5, 6 है, दूसरी वाली स्टेज में हमारा 5 है, तीसरी वाली स्टेज में 3 है और फिर चौथी वाली स्टेज में 3 है। तो इनमें इन असेसमेंट पीरियड्स में ये कलेक्टिव स्कोर चाहिए, वो भी सेकेंड और थर्ड के। देखिए ये सेकेंड और 3 यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी रेगुलेशन 2018 देखेंगे जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है, उसमें यहाँ पर गलती की हुई है, मिनिमम टोटल एपीआई स्कोर अंडर कैटेगरी 3 लिखा हुआ है, जबकि यूनिवर्सिटी ने जब हमारे ईसी में अडॉप्ट किया तो वहां पे उन्होंने ये करेक्शन कर लिया और वहां पे सेकेंड और 3 कर दिया है। अब जो मेन सबसे इशू जो है वो, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि क्या हमारी स्टडी लीव का क्या वो है, स्टडी लीव हम काउंट करनी चाहिए या नहीं, मतलब हमारी कैश 2018 में होगी या नहीं होगी। देखिए कैश 2018 में एक लाइन लिखी हुई है एक कि अगर मैं 1 मिनट दिखा पाऊँ आपको, एक्चुअली ये यूजीसी रेगुलेशंस हैं जो
देखिए ये वाला, ये पढ़िए आप। टाइम टेकन बाय कैंडिडेट्स टू एक्वायर एमफिल and or PhD degree shall not be considered as teaching experience to be claimed for appointment to the teaching position। तो ये तो अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। अच्छा, उसमें इसलिए बोलते हैं कि shall not be considered क्योंकि वहां पर स्क्रीनिंग के टाइम में टीचिंग के एक्सपीरियंस के पॉइंट भी हैं और पीएचडी के भी हैं। तो इन्होंने कहा भाई एक पॉइंट ले लो, या तो टीचिंग का ले लो या पीएचडी ले लो, तो इसलिए ये कर रखा है। तो ये तो हमसे पहली दो लाइनें हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करती प्रमोशंस के लिए। लेकिन जो सेकंड लाइन है, फर्दर द पीरियड ऑफ एक्टिव सर्विस स्पेंट ऑन परस्यूइंग रिसर्च डिग्री simultaneously with teaching assignment without taking any kind of leave shall be counted as teaching experience for the purpose of direct recruitment and promotion। oblique promotion भी कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं साथ में टीचिंग भी कर रहे हैं, बिना छुट्टी लिए आप कर रहे हैं, तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है प्रमोशन के लिए। अब कहीं भी नेगेटिवली फ्रेम नहीं है कि काउंट नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी उल्टा निकाले रही है कि इसका मतलब अगर आपने छुट्टी ली है तो पीएचडी जो है वो अगर ली है तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। अगर आपने पीएचडी के लिए ली है तो वो प्रमोशन के लिए एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन ये चीज कैश 2010 में नहीं थी। इसका मतलब कैश 2018 में मुझे एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैंने छुट्टी ना ली हो पीएचडी की तो मेरे लिए कैश 2018 बेनिफिशियल है। अगर मैंने छुट्टी ली है तो मैं कैश 2010 मेरे लिए बेनिफिशियल है। अब आते हैं हम इस पे कि व्हाट अबाउट द पास्ट एड हॉक टेम्पररी एक्सपीरियंस अंडर कैश 2010। देखिए ये बहुत ही बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक इशू है वो ये है कि यूनिवर्सिटी का भी ये कहना है देयर आर सम कुछ शरारती तत्व हैं विश्वविद्यालय में जो जानबूझकर इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। कुछ नेता लोग हैं जो करवा रहे हैं जानबूझकर कि भैया कुछ तो यूनिवर्सिटी को, ये टीचर्स को दिखाओ कि क्राइसिस है, नहीं प्रमोशन हो पा रहे हैं, प्रॉब्लम है ये, विदाउट टेलिंग व्हाट इज द रीजन। एंड दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग यू। जो यूजीसी रेगुलेशन 2010 था, देखिए ये मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, एज पर क्लॉज 10(1)(f) ऑफ द यूजीसी रेगुलेशन 2010, वो कहता है प्रीवियस रेगुलर सर्विस वेदर नेशनल और इंटरनेशनल शुड बी काउंटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रमोशन प्रोवाइडेड ... क्या उसका एफ पॉइंट लिया हुआ है मैंने, जो हमारी वो तो कहता है कि सिलेक्शन कमेटी वो होनी चाहिए, सब वो तो सबकी है। जो मेन पॉइंट है वो ये कहता है कि प्रीवियस अपॉइंटमेंट वाज नॉट एज ए गेस्ट लेक्चरर फॉर एनी ड्यूरेशन, मतलब गेस्ट का तो कितनी भी टाइम का होगा वो काउंट नहीं होगा। और एन एडहॉक और इन ए लीव वैकेंसी ऑफ लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन, किसी का एडहॉक था मान लीजिए 8 महीने का, वो भी काउंट नहीं होगा। 11 महीने का था वो भी काउंट नहीं होगा। या उसकी कोई छुट्टी लीव वैकेंसी 1 साल की लीव वैकेंसी पे था कोई, वो भी काउंट नहीं होगा। फुल स्टॉप। अब यहाँ पे बात रुक गई। अब कहते हैं फुल स्टॉप आगे, एडहॉक और टेम्परेरी सर्विस ऑफ मोर देन 1 ड्यूरेशन, एडहॉक और टेम्परेरी सर्विस ऑफ मोर देन 1 ड्यूरेशन कैन बी काउंटेड प्रोवाइडेड दैट। अब एडहॉक और टेम्परेरी को काउंट किया जा सकता है प्रमोशन में, ये काउंटिंग ऑफ पास्ट सर्विस का क्लॉज है। 10.1(f) जो है ना यूजीसी रेगुलेशन 2010 में, ये काउंटिंग ऑफ पास्ट सर्विस का क्लॉज है। वो ये 3 चीजें बताता है कि पीरियड ऑफ सर्विस वाज ऑफ मोर देन 1 ईयर ड्यूरेशन, कि एडहॉक कोई आदमी 2 साल से लगे हुए, कोई 3 साल से लगे हुए, कोई टेम्परेरी 1 साल से है, कोई 2 साल से है, तो ये होना चाहिए। दूसरा था इनकम्बेंट वाज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी। हाँ, एडहॉक की अपनी सिलेक्शन कमेटी होती है, टेम्परेरी की अपनी होती है, वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ही होती है। थर्ड, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, द इनकम्बेंट वाज सिलेक्टेड टू द परमानेंट पोस्ट इन कंटिन्यूएशन टू द एडहॉक और टेम्परेरी सर्विस विदाउट एनी ब्रेक। अब इसको समझिए, देखिए वो क्या कर रहा है कि इनकम्बेंट वाज सिलेक्टेड टू परमानेंट पोस्ट इन कंटिन्यूएशन टू द एडहॉक, मतलब आप एडहॉक थे और या टेम्परेरी थे, लेकिन आप परमानेंट, जब आपने ज्वाइन किया, परमानेंट ज्वाइन किया, तो सर्विस के बीच में ब्रेक नहीं था। कौन सी सर्विस के बीच में? जब आप एडहॉक से परमानेंट बने, मतलब मैं 21 जुलाई को मान लीजिए एडहॉक था और 22 जुलाई को मैंने कहीं परमानेंट ज्वाइन कर लिया, तो ये बेसिकली उसका क्लॉज है, विदाउट एनी ब्रेक। अब यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज क्या कह रही हैं कि अरे नहीं, एडहॉक को तो 4-4 महीने में ब्रेक दिया जाता है, तो ये तो कोई भी एडहॉक सर्विस काउंट नहीं होगी, जबकि ये गलत है। वो ऊपर ये विदाउट एनी ब्रेक की बात जो है वो सिर्फ जब वो कंटिन्यूएशन से जाता है परमानेंट होने पे तब है, क्योंकि ऊपर तो वो कहता है कि पीरियड ऑफ सर्विस वाज ऑफ मोर देन 1 ईयर ड्यूरेशन, वो पूरी पीरियड सर्विस को बता रहा है। इसका मतलब कोई एडहॉक 4 साल से लगा हुआ है, क्योंकि ये जो ब्रेक होता है जो हमको मिलता है वो 4 महीने, वो दैट इज द नोशनल ब्रेक। वो 1 दिन का जो ब्रेक है वो नोशनल ब्रेक है, दैट इज नॉट द एक्चुअल ब्रेक इन सर्विस। सो वो टेक्निकल ब्रेक है, उसको कोई वो हमारी कोई उसके लिए नहीं हो सकता वो,
तो इसलिए पीरियड ऑफ सर्विस वाज ऑफ मोर देन 1, कोई 2 साल से या 3 साल से उसका काउंट होना चाहिए। ये कब काउंट नहीं होगा, ये कब काउंट नहीं होगा, मान लीजिए कोई 3 साल से एडॉक था और वो फिर डिस्प्लेस हो गया, और फिर वो जब परमानेंट जॉब की बारी आई, जब वो परमानेंट हुआ, तो उसका 2 दिन का गैप हो गया या 5 दिन का गैप हो गया, महीने का गैप हो गया, देन इट इज द टाइम पीरियड इज इररिलेवेंट। लेकिन अगर कोई 3 साल या 4 साल से एडॉक था, 5 साल से एडॉक था और एक एक दिन के नोशनल ब्रेक पे काम कर रहा था, एंड देन ही जॉइंस एज ए परमानेंट इन एनी अदर कॉलेज, तो उसको बिना, ये क्लॉज 3 में आएगा इसके एफ के, तो इसीलिए उसका सर्विस काउंट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मतलब ये मिस इंटरप्रिटेशन है, इस रेगुलेशन कहीं नहीं बोलता। अब देखिए, रियलाइजिंग दिस थिंग, रियलाइजिंग दिस प्रॉब्लम, जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 में जो केस आया, देखिए ये जो केस आया इसका वही 10 क्लॉज 10F है, वो सारी बात वही कहता है कि प्रीवियस रेगुलर वेदर नेशनल शुड बी काउंटेड प्रोवाइडेड दैट। अब देखो उन्होंने क्या कर दिया कि प्रीवियस एडॉक और टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्चुअल, अब कॉन्ट्रैक्चुअल डाल दिया और लिख दिया साथ में बाय व्हाटएवर नेम एंड क्लचर इट मे बी कॉल्ड shall be counted for direct recruitment for promotion provided that। पहला पॉइंट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट वाज नॉट लोअर देन, ऑब्वियसली किसी की नहीं होती। सेकंड, ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमिटी है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि इनकम्बेंट वाज ड्राइंग टोटल ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स नॉट लेस देन द मंथली ग्रॉस एमोल्यूमेंट रेगुलरली अपॉइंटेड, मतलब जो रेगुलर अपॉइंटेड सैलरी मिल रही हो एसएन प्रोफेसर को वो मिलनी चाहिए, तो वो भी हो रही है। अब इन्होंने ये ब्रेक वाला क्लॉज ही हटा दिया, तो इनको ये समझना चाहिए कि what is the intention of the legislature? Intention of the legislature or the law making body is कि they don't want to count this break. So why you are counting this break? क्योंकि अब तो ये ब्रेक ही हटा दिया इन्होंने, ये वाला हटा ही दिया ब्रेक का पार्ट। तो इसका मतलब अगर आप कैश 2018 ऑप्ट करते हैं तो आपको, अब देखिए बड़ा, इट इज ए काइंड ऑफ ए यू नो व्हाट आई से प्रिजनर्स डिलेमा, और एक बहुत बड़ा ये हॉब्सन चॉइस है कि एक्चुअली में कोई चॉइस नहीं है हमारे पास कि थर्ड में वो अगर हम कैश 2018 ऑप्ट करते हैं तो हमारी वो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा हमारे को? वो ग्रेडिंग वाला पास्ट बैक डेट से हम किस किस से कराएंगे, वो दिक्कत है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो एडॉक पीरियड है वो काउंट हो जाएगा, लेकिन उस एडॉक पीरियड में भी हमारे को ग्रेडिंग तो चाहिए। अगर मुझे पीछे, अगर, हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं एडॉक पीरियड काउंट करा रहा हूँ और वो प्रमोशन में, तो वो स्टेज का मुझे वो ग्रेडिंग भी तो चाहिए। कमिटीज में काम किया था और बहुत सारे एडॉक्स को अब काम कराने लग गए, एक टाइम था कि कमिटी में कन्वीनर ही नहीं बनाते थे, तो वो तो और काम भी नहीं करने देते थे, काम कराते थे लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये अब इन्होंने इसमें खत्म ही कर दिया कि कोई ब्रेक वाली बात ही नहीं है। तो अगर मैं कैश 2018 ऑप्ट करता हूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, फायदा भी है, प्रॉब्लम भी है। अगर मैं कैश 2010 ऑप्ट करता हूं तो वहां पे ये ब्रेक के चक्कर में, मेरे को अटकाने के चक्कर में है। तो आपको ये, इसमें ये जितने भी, मैंने तो ये सजेशन भी दी थी कि देखिए, मैंने एक हमारे बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक नेता को बोला कि भैया आप एक काम कीजिए, एक यूजीसी से एक क्लैरिफिकेशन, एक लाइन लिखा दीजिए कि एज पर 10(1)(f) ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2010 द नोशनल ब्रेक shall not be considered as a break for promotion purposes। एक क्लैरिफिकेशन, मैं ये नहीं कह रहा चेंज करने को। तो उनका कहना था कि अरे 2010 को कैसे चेंज करेंगे अब। तो मैंने उनको कहा कि 2018 में यूजीसी रेगुलेशन 2018 ने कैश 2010 को ही तो रिलैक्स किया है, तो रेट्रोस्पेक्टिव किया ना रिलैक्स। तो मैं तो रिलैक्स करने को भी नहीं कह रहा, मैं तो क्लैरिफिकेशन देने को बोल रहा हूं। अगर ये लाइन आ जाए, यूजीसी एक लाइन ये लिख दे कि क्लैरिफिकेशन, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं करना, सारे प्रमोशन हो जाएंगे, कोई भी सारा एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। कम से कम इस वाले कैश 2010 में जो कंटिन्यूस सर्विस वाला है वो तो हो जाएगा। जिनका ब्रेक हो गया, एडॉक रहे 6 महीना, फिर 2 महीने का ब्रेक हो गया, 15 दिन का, देखिए उनकी प्रॉब्लम है, वो उनका सब बेकार हो जाएगा। तो लेकिन उन लोगों को फायदा हो जाएगा, कम से कम कुछ लोगों को तो फायदा होगा। किसी को कुछ देने से तो अच्छा है कि कुछ तो दो आप। तो जो जिन लोगों का कोई भी ब्रेक एज सच नहीं है, जो सिर्फ नोशनल ब्रेक है, उनको ये फायदा हो जाएगा। तो एडॉक, मैं आपको अभी कहूंगा कि अगर जब हम ऑप्शन फॉर्म भरेंगे तो हमें ये पीरियड अपना, जो लोग जिनका कंटिन्यूएशन है, कोई ब्रेक नहीं है और वो परमानेंट हुए बिना किसी एक दिन के ब्रेक के, दे शुड काउंट देयर डेट इनिशियली फ्रॉम व्हेन दे गॉट एडॉक। पहला एडॉक जब मिला, अगर उनका कंटिन्यूएशन है, कोई ब्रेक नहीं है बीच में, ठीक है, नहीं तो वो कैश 2010 में फिर नहीं, वो ये इसकी वजह से ऑब्जेक्शन करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। तो ये एडॉक वाला काउंट हुआ, ये मैंने आपको बता चुका हूं मैं। अब ये बताइए, देखिए अब ये हमारे पास स्कीम्स क्या हैं, मेरे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है, इसके बाद देखूंगा कि क्या है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी फॉल करती है 30 जून
और 30 जून 2010 एंड 11 जुलाई 30 जून 2010 एंड 11 जुलाई 2016 के बीच में। तो जो उस टाइम प्रिवेलिंग स्कीम थी वो, अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अमेंडमेंट्स आए थे 11 जुलाई को, फिर अमेंडमेंट आ गए थे, तो इसलिए 30 जून और 11 जुलाई 2016 को कैश 2010 एप्लीकेबल था। एंड आई कैन एक्सरसाइज दी ऑप्शन, कायदे से तो मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ ऑप्शन कैश 2018 या कैश 2010 की, लेकिन मैं करूंगा नहीं ना कैश 2018, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम क्या आएगी, मेरे को वो सेटिस्फैक्ट्री ग्रेडिंग वाली प्रॉब्लम आएगी। अगर मेरी एलिजिबिलिटी फॉल करती है 11 जुलाई 2016 और 17 जुलाई 2018 के बीच में, तो मेरी प्रिवेलिंग स्कीम थी कैश 2010 विद 4th अमेंडमेंट जो था। इसमें भी मेरे पास ऑप्शन है कैश 2018 लेने की, रिलैक्स, या कैश 2010 जो रिलैक्सेशन वाली है यूजीसी ने जो दिया, ये अभी जो दिया है, ठीक है। लेकिन मेरे को फिर वही प्रॉब्लम आने के डर है, क्या कि मेरा ग्रेडिंग वाला, तो वो इंडिविजुअली आप देखिए कि क्या ग्रेडिंग आपकी पॉसिबल है। अगर तो हो सकता है पहले प्रमोशन में आप कैश 2010 ले लो, दूसरे प्रमोशन में आप कैश 2018 ले लो। डेट ऑफ एलिजिबिलिटी अगर आपकी ऑन और आफ्टर 18 जुलाई है तो आपकी स्कीम है 2018 की, एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्सरसाइज अगेन कैश 2018 या कैश 2010 if just completing the assessment period. But remember, relaxation and API in category 2-3 will not be given after 18 जुलाई। तो वर्चुअली प्रैक्टिकली आपकी प्रमोशन डेट अगर 18 जुलाई, एलिजिबिलिटी 18 जुलाई के बाद बनती है, तो आप कैश 2018 ही ऑप्ट करें। ये आप देख लीजिए चूज क्या कर सकते हैं। अब मोटा मोटा तौर पे कैश 2010 रिलैक्स्ड बाय यूजीसी मुझे कब चुनना चाहिए, इफ यू हैव रिक्विजिट रिलैक्स्ड एपीआई पॉइंट्स। ये सभी के हैं, कैटेगरी 2 और 3 के टेकन टुगेदर ये सभी के हो जाएंगे अगर उन्होंने कमेटी में काम किया है, किसी के साथ भी काम किया है। आप अपने कन्वीनर से, जो भी वो कन्वीनर थे, लिस्ट होती है कॉलेजेस में कौन कौन कन्वीनर्स थे उस टाइम, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए कम से कम। ये मत सोचिए कि फॉर्म आएगा जब देखेंगे जब होगा, कम से कम अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, ऑप्शन फॉर्म भर के दे दीजिए, ऑप्शन के बाद प्रमोशन फॉर्म भर दीजिए, जो वो तो चेंज नहीं होना, कैश 2010 वाला जो 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 प्रमोशन फॉर्म है वो तो वही रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। You have not, and if you have not done PhD and you are eligible for associate professor, then obviously I should go for CAS 2010. Then there is no break in ad hoc or temporary service, and including that, and want to include that period in promotion, that is other than notional break, even 1 day। मतलब वो वाला जो नोशनल ब्रेक के अलावा मेरा कोई ब्रेक नहीं है। अगर नोशनल ब्रेक के अलावा अगर ब्रेक है तो फिर मेरी कैश 2018 वाली प्रमोशन की जो आती है, या मैंने स्टडी लीव ली हुई है, स्टडी लीव ली हुई है तब भी मेरे को 2010 बेनिफिशियरी है। कैश 2018 में देखिए, क्योंकि ये हर साल असेसमेंट की बात नहीं कर रहा, ये तो कलेक्टिवली बात कर रहा है ना, तो इसलिए मेरे को स्टडी लीव वाला क्लॉज मेरा यहाँ पर ओवरलुक्ड है कैश 2010 में। और कैश 2018 में आई विल गो फॉर कैश 2018 व्हेन आई डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड desired API scores and there is no problem in collecting APR from previous teacher in charges. If I am eligible for promotion to the level of associate professor and having a PhD degree, and there is a break in ad hoc temporary service, देखिए इस वाले में जो कैश 2018 में यहाँ पर आपका अगर पार्ट्स, बिट्स एंड पार्ट्स में भी है तो भी पीरियड काउंट हो सकता है। अगर किसी का 8 महीने था फिर 2 महीने का ब्रेक हो गया, वो क्योंकि वहां पर वो ये बोल ही नहीं रहा कि विदाउट एनी ब्रेक वाली बात ही नहीं कर रहा है, तो ये काउंट हो सकता है ये वाला। एंड आई हैव नॉट टेकन द स्टडी लीव, देन आई शुड गो फॉर कैश 2018। सो दीज आर द 2 ऑप्शंस व्हिच आई शुड गो फॉर। मतलब ये, लेकिन ये डिफर करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केसेस में। देखिए जहां तक बात है मैटरनिटी लीव की, चाइल्ड केयर लीव की, वो स्पेसिफिकली कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो कैश 2018 में जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया दिया है उसमें आपके असेसमेंट को वो छोड़ देगा उस पीरियड के लिए, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। टीचिंग वाली, आपकी एक्टिविटीज वाली, जब आप छुट्टी पे होंगे तो कहां से पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपको ग्रेडिंग कहां से देगा, तो ऑब्वियसली वो एक्सटेंड हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली वो आपका पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। सो दिस वाज माय मतलब प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय साइड। नाउ इफ यू हैव योर क्वेश्चंस देन you can do that. How would we like to go about questions? Would everybody want to ask the questions individually, one by one, or as everybody? I think we can switch on our mics and ask ourselves. One thing I missed. That is, how to what option this promotion form जो है इसको क्या करना है। ये देखिए आपकी आई hereby opt दी स्कीम आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, कैश 2010 या कैश 2018 इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 6.3 फॉर प्रमोशन फ्रॉम। अब बात ये, कई लोग बोल रहे हैं कि हम क्या एक प्रमोशन एक बार में भरें,
आप अपना दावा सारे प्रमोशन जो अपनी बनते हैं वो एक बार में दे दीजिए, ऑप्शन सारी दे दीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से क्लेम करने वाली बात होगी। आप क्यों नहीं क्लेम करेंगे, वो पीरियड बोल रहा है ना क्लेम करने की। ऑप्शन आप पता लगा कि 21 वो 18 जुलाई 2021 निकल गई, आप ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं कर पाए, फिर आपको डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से नहीं मिलेगा, फिर उसमें वो वहां पे क्लर्क ऑब्जेक्शन लगाएगा कि डेट ऑफ ये प्रमोशन किस डेट का है। तो आप ये यहाँ पर कैश 2018 या कैश 2010 जो आपके पीरियड में बन रहा है उसको भरिए। नीचे लिखेंगे फॉर प्रमोशन फ्रॉम, अब इसमें लिखेंगे AGP 6000 टू AGP 7000 फॉर द फर्स्ट प्रमोशन, या आप स्टेज 1 टू स्टेज 2 भी लिख सकते हैं, या लिखेंगे 7000 टू 8000 स्टेज 2 टू स्टेज 3, या लिखेंगे 8000 टू 9000 जो एसोसिएट प्रोफेसर वाला है। तो जो भी आप स्टेज और ग्रेड्स आप लिख सकते हैं। नाम नीचे देखिए, नाम अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, कॉलेज। नाउ डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, ये जो डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट है, ये मैं आपको बोल रहा था, ये वो लिखिएगा जो आप जहां से आपका पीरियड सबसे पहला प्रमोशन काउंट हुआ। मतलब आप एडहॉक थे लेकिन आपका कोई ब्रेक नहीं था, आप वो डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट लिखिए। अगर आप परमानेंट ही सीधा लगे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सीधा वो डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट। डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट इज नॉट अ परमानेंट अपॉइंटमेंट, इट इज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट दैट यू गॉट एज ए एडहॉक और टेम्परेरी प्रोवाइडेड उसमें जब से लेके तब तक नोशनल ब्रेक के अलावा कोई ब्रेक नहीं था। तब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यहाँ पर आप वो डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट वो लिखिए और प्रेजेंट डेजिग्नेशन आपका है, साइन कर दीजिए। जितने आप बनते हैं, आपके 3 प्रमोशन ड्यू हो गए हैं, 2 हो गए हैं, सबके ऑप्शन फॉर्म अलग अलग भर के आप जमा करा दीजिए। थैंक यू। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहूंगी, क्लैरिफिकेशन। जो अभी आपने कहा डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, वो उनके लिए भी एप्लीकेबल है जिनका स्टेज 1 टू स्टेज 2 हो चुका है? हाँ, वो तो लिखना पड़ेगा ना आपको, स्टेज ऑफ पहली वाली तो लिखनी पड़ेगी, उसी से तो वो अंदाजा लगाएगा कि किस स्टेज में पहुंच चुका है ये प्रमोशन लेने के लिए। अच्छा, तो वो तब भी लिखना पड़ेगा अगर फर्स्ट प्रमोशन हो चुका है तब भी? जी। So, do we want to ask questions individually, or do we want that I should pick up the questions from the chat box? मुझे लगता है क्या हम अपने माइक स्विच ऑन करके और इंडिविजुअली क्वेश्चंस अगर पूछ लें तो we will feel better? Yes, that will be better. Thank you. That will be better because we know our individual cases the most. I mean, you would be the best judge, right? See, yeah, I think we can go by the chat boxes. सबसे पहले जो चैट में मुझे दिख रहा है कि इन कैश 2018 नो API ओनली TIC ग्रेडिंग। यस, इन कैश 2018 कोई API की ग्रेडिंग नहीं है, कोई API नहीं है, स्कोर नहीं है, सिर्फ जो आपको ग्रेडिंग असेसमेंट चाहिए गुड या सेटिस्फैक्ट्री, वो आउट ऑफ 4 या आउट ऑफ 5 वो वाला चाहिए, और TIC से आपको उसको वेरीफाई कराना है अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, तो वही है। देन पीरियड ऑफ CCL एंड मैटरनिटी लीव विल बी काउंटेड इन सर्विस और नॉट। देखिए, मैंने आपको बोला कि कैश 2010 में कहीं पर भी ये लिखा नहीं हुआ है कि पीरियड नहीं काउंट होगा। कैश 2018 में भी नहीं काउंट कहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह पे लिखा हुआ है कि जो ग्रेडिंग है, जब हम वो ग्रेडिंग करेंगे तो उस ग्रेडिंग पीरियड में, असेसमेंट पीरियड में इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं पे बोला नहीं हुआ है, लेकिन कैश 2018 में इट गेट्स एक्सक्लूडेड बाय दैट, बट इन कैश 2010 कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। आपका सिर्फ जो असेसमेंट है वो कलेक्टिवली है, तो उसमें यू कैन गेट अवे विद दैट एंड मे नॉट बी, मतलब आप जरूरी नहीं है कि आपका वो, मतलब वो इन दैट केस वो पीरियड कैन बी काउंटेड। Okay. Can I read out the questions in that case? We have a question from Sarabjit who asks, suppose the first promotion, am I audible? Yes. Yeah, suppose the first promotion was due in 2012, the second in 2017, and the third in 2020. Will the promotion be applicable from that date? देखिए, पहला प्रमोशन था ड्यू 2012 में, सेकंड प्रमोशन 2017 में और थर्ड प्रमोशन 2020 में। तो आप पहला वाला जो आपका ड्यू है 2012 में, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप भरिए कैश 2010 की ऑप्शन दीजिए उसमें। जो सेकंड है 2017 में, इसमें भी आप कैश 2010 भरिए, और जो थर्ड प्रमोशन आपका 2020 है, इसमें आप कैश 2018 भरिए, कैश 2018 भरिए। आपको ये बिल्कुल बैक डेट से ही मिलेंगे सारे प्रमोशन। Thank you. I can go on to the next question, which is Chetan asks, is there any prescribed performer for performance appraisal? देखिए, अभी ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्राइटेरिया अभी नहीं है। जो आपने जो वो दिया हुआ है ना, जो मैंने दिखाया था आपको एक एक्टिविटी ग्रेडिंग गुड, उसी में वो आप बना के अपना कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है, उसी में आप बना लीजिए कि पार्टिसिपेशन एंड एक्टिव, उसी फॉर्म के हिसाब से कहिए तो मैं बना के भेज दूंगा।
एक बॉक्स बना के कि कितनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, नंबर ऑफ आवर्स, परसेंटेज, और नीचे उसके रिमार्क्स आ जाएंगे, टीचर इंचार्ज साइन कर देगा और परसेंटेज ग्रेडिंग दे देगा। उसमें कोई अलग एक है, यस आई हैव दैट, एक पुरानी एक ग्रेडिंग का एक फॉर्मेट है, आई कैन सेंड दैट। We'll be grateful, Dr. Atri. एक और चीज है, जैसे आप कह रहे हैं नए फॉर्म्स नहीं आए हैं, which is a sequel to this question. नए फॉर्म्स नहीं आए हैं और जो CAS 2010 से भर रहे हैं वो पुराने फॉर्म्स ही ले लें, पर उस 2010 में भी मल्टीपल अमेंडमेंट्स के साथ मल्टीपल तरह के फॉर्म्स आए हुए हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखिए मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी, अगर आपने देखा होगा तो कैश 11 जुलाई 2016 के बाद 11 जुलाई 2016 से पहले मैं आपको दोनों के दोनों फॉर्म वो मैं भेज दूंगा, अगर आपकी एलिजिबिलिटी उससे पहले फॉल करती है उसके बाद फॉल करती है तो। पर अब तो वो सारे जो डिस्टिंक्शंस हैं वो अब एप्लीकेबल नहीं रहेंगे ना, अब तो सिर्फ वो है नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो कैटेगरी 2 और 3 है उसमें कलेक्टिव स्कोर कर दिया है, आप वो भर दीजिए जस्ट टू। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज ये जितने कैश 2010 वाले जो फॉर्म है, जो 11 जुलाई 2016 से पहले के या उसके बाद के जो फॉर्म है, इनके लेटर, इनका जो फर्स्ट पेज है ना, कवर पेज, कॉलेज का लेटर हेड होना चाहिए। जो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे भेज देते हैं, जो हमारे को डाउनलोड करते हैं, वहां पे जाके वो उसको साइड में टच कर देते हैं। वहां पे इतनी मतलब देयर इज सो मच ऑफ रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी इन द यूनिवर्सिटी दैट दे डोंट वांट टू इवन इंटीमेट द कॉलेज कि भाई आप लोगों की ये ऑब्जेक्शंस है, अगर आप ऑब्जेक्शंस लगा के भेज दें तो उसको ऑब्जेक्शंस को रेक्टिफाई करके दोबारा भेज दिया जाए फॉर्म, तो वो ये नहीं करते। तो इसीलिए वो मैं एक अलग से आपको एक काम, मुझे एक ईमेल दे दीजिएगा, मैं उसमें सारा शेयर कर दूंगा, जो आपकी जो ये आपके फॉर्म्स हैं, 2 फॉर्म्स, और ये भी कि जो शीट वाली है, जो प्रोफॉर्मा वाला है कि ग्रेडिंग सिस्टम कैसे, मतलब जो टीचर इंचार्ज से कैसे कराना है, वो भी एक ये दे दूंगा मैं साथ में, तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई कैन इफ एनी टीचर ऑल्सो, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ मतलब प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है तो आप, मैं अपना ईमेल आईडी और मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, तो यू कैन यू नो that'll be very nice. आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई क्वेरी होगी ऐसा होगा तो यू नो, तो जो भी टीचर, जैसे मेरा डॉक्टर अत्री 11 जुलाई 2016 से पहले वाले में ड्यू है, और वो 2 प्रमोशंस उसमें ड्यू हैं, सो दैट मींस कि मेरा कैपिंग वाले में आ जाता है जो रिसर्च स्कोर, वो 2013 में जो भूल जाइए, अब उस कैपिंग को भूल जाइए। अगर मैं वही मैं कह रही हूँ, वो मैं समझ गई, लेकिन अगर मैं वो 2013 वाला फॉर्म उठाती हूँ तो मैं क्या कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रही इवैल्यूएटर्स के लिए? नहीं, वो नहीं करेंगे आपको, ये तो उन्होंने कुछ कहना ही नहीं है उस चीज पे, वो इवैल्यूएटर्स के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अब मैं क्या नहीं करूंगी। हाँ, आप चाहते हैं आप उसको देखिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी है जी। मैंने एक उनको बोला था एक जगह पे यूनिवर्सिटी में, मैंने कहा जी आप, कहते जी कॉलेजेस क्यों नहीं कर देते, कॉलेज हम कोई मना थोड़ा ना कर रहे हैं, वो नए फॉर्म जो फॉर्म है उसके हिसाब से भेज दें, वो हम उनको ये थोड़ा मना कर रहे हैं कि भाई आप ये मत करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको 2018 वाला फॉर्म नहीं मिला वो हम मानते हैं, लेकिन पिछले वाले प्रमोशंस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आप भर लीजिए। उसमें कैपिंग जो आप बोल रहे हो ना कि पुराने फॉर्म में कैपिंग दी हुई है, इग्नोर दैट कैपिंग ना, आप अपने हिसाब से लगाइए, अपने जो पॉइंट्स बनते हैं वो उसको देखेंगे 20 और 50 और उसके हिसाब से देखेंगे उसको। ठीक है। So I'll move on to the next question now. The next question, Harleen asks, if a person is eligible or due for the second promotion before 30th June 2010, is API applicable to her? देखिए, अगर आपका actually who's not been able to join us for some reason. No problem. If a person is eligible and his promotion is due for, मतलब second promotion is due before 30th June 2010. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए एक टेक्निकल बात है, वो ये है कि प्रमोशन आपने कब लेना है, प्रमोशन आपने लेना है आज की डेट में, बैक डेट से आज की डेट में लेना है, तो आज के कानून के हिसाब से चलेंगे। आज का कानून है यूजीसी रेगुलेशन 2018, वो किसकी ऑप्शन देता है, वो ऑप्शन देता है आपको सिर्फ 2000 कैश 2010 की या कैश 2018 की, वो एमपीएस 1998 की ऑप्शन नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये है आपको कैश 2000, अब देखिए कोर्ट में पड़े हुए हैं कुछ केसेस, आप जा सकते हैं वो कोर्ट में पड़े हुए हैं, लेकिन अगेन इट विल बी मतलब प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको
कि दिस इज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, मतलब प्रैक्टिकल सजेशन मैं दे रहा हूँ, मैं कोई एक एक्टिविस्ट की नहीं दे रहा हूँ कि नहीं हम लड़ेंगे हम ले लेंगे, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि कोर्ट आपके फेवर में दे दे, और वो देगा भी मोस्टली लगता है, लेकिन व्हेन, कब, नोबडी नोज। तो इसमें अगर आज आपको लेना है, आप क्या आपने, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या आपने उस टाइम अपना क्लेम किया था, आपने क्या फॉर्म भर के भेजा था? अगर नहीं भेजा तो भूल जाइए, फिर आपको नहीं मिलेगा। आपको फिर आज की डेट में ही भरना पड़ेगा, कैश 2010 भरना पड़ेगा। और मान लीजिए ये जो कह रहे हैं कि सेकंड प्रमोशन इनका ड्यू हो गया, मैं एक डेट लेके बताता हूँ कि मान लीजिए इनका प्रमोशन ड्यू हो गया 30 जून 2009 को हो गया, तो शी नीड टू सेक्रीफाइस 1 ईयर टू बिकम, एंड उनका एलिजिबल 30 जून 2010 को दिखाना पड़ेगा इनको एलिजिबिलिटी। इनको 1 साल अपना फॉरगो करना पड़ेगा टू बिकम एलिजिबल ऑन 30 जून 2010। तो इनका पुराने रूल से नहीं हो पाएगा बिना पॉइंट्स के? नहीं, इन्होंने दावा ठोका था अपना, इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है। अगर इनका फॉर्म पड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में जाके गया हुआ है पुराना, तब तो वो कंसिडर हो सकता है। और अगर वो कॉलेज में है और क्या कॉलेज आपका कॉलेज मान लेगा आपका कि उन्होंने फॉर्म रखा हुआ है जब से, या यूनिवर्सिटी नहीं भेजा? मैं तो हाइपोथेटिकल, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ कि अगर कॉलेज ये कहने को तैयार है, अगर इनके पास कोई प्रूफ है कि मैंने कॉलेज में भी दिया हुआ है, देन यू कैन गेट रिलीफ। बट मोस्टली देखा है कॉलेज में ऐसे ही रखाते हैं, सेक्शन ऑफिसर की टेबल पे वो भी ऐसे ही रख देता है साइड में, वो भी कहेगा जी हम क्या करें, कोई अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए सर, हाँ जी, कैन आई इंटरप्ट? मेरा भी कुछ सिमिलर ही केस है, पर मैंने डाला भी है चैट बॉक्स में। सर, मैं डॉक्टर हेमलता बोल रही हूँ। सर, मैं ये पूछ रही थी, आपने जो शुरू किया था तो मैं बड़ी होपफुल थी, आपने कुछ नेचुरल जस्टिस की बात की थी जो ये कहता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली हम कैसे करें। तो मेरा भी केस फरवरी 2009 का है। तब तो क्राइटेरिया यही था कि हम लोग को रिफ्रेशर कोर्स करना था और उसके बाद जो भी इयर्स इतने होते हैं। अब 2010 में आया है कि आपकी पब्लिकेशंस भी होनी चाहिए। अब वो हम सब वो कैसे, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अब मुझे, अब जिस दिन मेरी पब्लिकेशन है उस तब से ही मुझे मिलेगा, तो इट इज नॉट अबाउट फॉर गोइंग 1 ईयर। नहीं, पब्लिकेशन की तो बात ही नहीं है अभी। सर वो उस प्रमोशन पेज में है ना सर, आपने स्टेज 2 to 3 भी बताई है ना, मैं तो 3 स्टेज के लिए भी एलिजिबल हो गई हूँ, तो पर मेरी प्रमोशन। हाँ जी, बात सुनिए। पहली बात तो ये कि अब पब्लिकेशन को सेपरेटली काउंट नहीं किया जा रहा है कैश 2010 में, वो कैटेगरी 2 और 3 को क्लब किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि रेट्रोस्पेक्ट, ये कोर्ट में गया था, मैंने बताया था कि ये मैटर कोर्ट में गया कि लोगों ने कहा कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे लागू कर सकते हैं, तो कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया और कहा कि रेट्रोस्पेक्टिवली आप नहीं लागू कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपको बैक डेट से कोई पॉइंट्स करने के लिए नहीं बोल सकता। इसी चक्कर में इन्होंने कहा कि सारे खत्म कर दो पॉइंट्स और बिल्कुल नॉमिनल कर दो कि सभी के बन जाएं, रिसर्च पॉइंट्स को हटा ही दिए। अब बात आपकी आती है कि आपने कहा कि भाई मेरे अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आपने उस टाइम जब आपकी एलिजिबिलिटी बनी, तो क्या आपने प्रमोशन फॉर्म भर के दिया था? क्योंकि कोर्ट ये कहती है कि भाई आपने क्या मांगा था, रिलीफ मांगा था, आपने अप्लाई किया था। अगर सर कॉलेज लेवल पे तो किया ही था, कॉलेज के बाद कॉलेज लेवल पे तो एक नहीं 2 बार ही भरा होगा, फॉर्म भरा है, लेकिन आगे क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो हमें नहीं पता। तो अब आप पता करो, अगर वो यूनिवर्सिटी गया है तो आपका दावा बनता है उस पर, और आपको कोई रिसर्च पब्लिकेशन देने की जरूरत नहीं है, फिर आपको फरवरी 2009 से ही मिल जाना चाहिए। ठीक है, मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा नहीं, मिल जाना चाहिए। नहीं, मेरा कंसर्न सर ये था कि जो आपने स्टेज 3 बोला है ना, उसमें बोला है 3 years इन स्टेज 3 में, उस पर एक पब्लिकेशन फॉर PhD होल्डर्स बोला है। तो हमारी पब्लिकेशन तो एंटायर सर्विस में जरूरी नहीं है सर पब्लिकेशन हो। आई मीन मेरा केस पहले नहीं थे, मतलब इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं था, तो ऐसे पब्लिकेशंस नहीं है, प्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन पब्लिकेशन नहीं हो तो फिर वी कांट इवन क्लेम। मैम देखिए, मेरे मन तो ये कहता है कि आपका होना चाहिए, लेकिन ये जो मैंने सिर्फ इंटरप्रिटेशन करके बताया है वो ये कह रहा है ये करेंगे नहीं। ये जो तो ठीक है, तो उसमें ये सीधी सी बात है, एक क्लरिकल मेंटेलिटी है, वो सीधा देखेंगे वहां पर कि ये फॉर्म है, नहीं है जी, ये चीज नहीं है, वो नहीं है, तो चलिए सर, थैंक यू सो मच, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। Okay, the next question is by Poonam Nasa. Is this, I think you've already taken up, Arun? Is yes. Past 2018 no API only PIC grading? You've already taken that up. मैं skip कर गया था पीछे वाले क्वेश्चंस, मेरे स्क्रीन पे ये आ रहा था, मैं यहीं से शुरू हो गया था। And then another question she asks is, period of CCL and maternity leave will be counted in service or not? इसका भी मैंने आंसर कर दिया।
जी. Now Pooja Jaggi would like to answer a question. Would like to put up her questions herself. So I request you to switch on your mic and go ahead, please, Pooja. Thank you, Garima. Thank you, sir. Sir, one question, that if our promotions don't happen till July 2021, as you said, then we will not get the benefit of CAST 2010 relax. मैं 2-3 क्वेश्चन है, मैं सारे पूछ लेती हूँ. एक एक करके आंसर देते हैं. अच्छा, एक एक करके. ठीक है सर, ठीक है. आपका पहले ये कि आपका प्रमोशन नहीं होता अगर जुलाई 2021 तक, तो आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा. जुलाई 2021 तक प्रमोशन की बात नहीं है. जुलाई 2021 तक आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है. ओके ओके, थैंक यू. जुलाई 2003 साल का ऑप्शन एक्सरसाइज करने का है. राइट. Second question is, sir, that in my particular case, I got permanent in August 2009, and since I had past ad hoc experience, so I got my first promotion in an interview in 2011, but I got the promotion from the day I became permanent, that is August 2009, and I got the arrears from July 2009. So, what will be the date of my next promotion in terms of months? ये डेट क्या थी आपकी? अगस्त 2009 की डेट क्या थी आपकी? 18 अगस्त 2009 में मैं परमानेंट हुई थी. आप एरियर्स मुझे मिले थे आपको 67,000. ठीक है, 18 अगस्त 2009 से ही आपको पहला प्रमोशन मिल गया था? हाँ, मेरे को पहला प्रमोशन जी 2009 से, मेरे को 18 अगस्त 2009 से पहला प्रमोशन मिल गया था 2011 की इंटरव्यू में. और मेरे को एरियर्स मिले थे जुलाई से. आपका 18 अगस्त 2014 में सेकंड प्रमोशन ड्यू हो गया. ठीक है सर. सर, और मेरा जो है 2014 में सेकंड है, और फिर 2017 में थर्ड. आपका 18 अगस्त 2017 में आपका थर्ड है. हाँ जी. तो सर मेरे को कैश 2010 आप तीनों आप दोनों के केसेस में आप कैश 2010 भरिए. थैंक यू सो मच सर, दैट्स ऑल. थैंक यू गरिमा. Okay. So that answers your question, Pooja. The next question is by Sonia Aneja. If our TIC has retired, we can still take the grading from her? उसी डेट की देनी पड़ेगी उनको. पीछे की डेट की देनी पड़ेगी. Sonia, does that clear your confusion? If the TIC is willing to give an back date, I think it should be acceptable. लेकिन आपको सारा वेरीफाई कराना पड़ेगा, मेरी क्लासेस की परसेंटेज और वो जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट हुआ उसका प्रूफ भी आपको रखना पड़ेगा. So basically she will have to verify that. So in that, what will she be? But currently she's retired, she's not a part of the college anymore, so she can just sign on that sheet saying that verified for that period. मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो. उस केस में आप क्या करिए, आप ये जो जैसे आपने 3 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया उस साल, तो वो ना आप अलग अलग कन्वीनर से आप वो साइन करा लीजिए कि अलग किया, उसके बेसिस उस पे भी साइन करा लीजिए, जो बनेंगे ना उस पे भी टीआईसी के साइन करा लीजिए, और फिर उस पे अपने जो ग्रेडिंग शीट है उस पे टीआईसी के साइन करा लीजिए. सिर्फ आप सिंपली वो लाएंगे तो आपसे वो भी मांगा जाएगा कि आपका वो प्रूफ भी आप लगा दीजिए. See, but for teaching तो सिर्फ TIC साइन करेगी ना. For activity, yes, you can. नहीं, एक्टिविटी वाला भी वो देखो TIC बोल रहा है, वो पूरा जो है ना आपका TIC, ये एक तरह से गवर्नमेंट में हायरार्की होता है ना, जो मेरा सीनियर होता है वो मेरी परफॉर्मेंस को असेस करेगा. तो इवन आई एम इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और जहाँ मैंने कल्चरल में काम किया था, कल्चरल के कन्वीनर के बेसिस, देखिए कल्चरल के कन्वीनर से मैं लिखवाऊंगा, उसके बेसिस पे मेरा TIC साइन करेगा. Okay, so that TIC she is eligible to sign even if she is retired, basically. उसका काउंट होएगा ना साइन. बिल्कुल, वो उसी डेट का करेंगी ना. अच्छा, for that period she'll be. जब वो इन सर्व थी तो वो बैक डेट में कर देंगी तो ऑब्वियसली एलिजिबल है, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. ठीक है. थैंक यू. है कि आज उन्होंने साइन किया है, उसमें बेशक आप आज की डेट में बता दीजिए, अगर वो आज की डेट में साइन करती हैं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ये लिख देंगे कि शी हैज डन दीज थिंग्स एट दैट टाइम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि सबको पता है कि ये ग्रेडिंग जब उस टाइम थी नहीं, तो ऐसे थोड़ा ना किसी आदमी को पहले से पता होगा कि वो ग्रेडिंग पहले ही बना के रखा होगा उस टाइम पे. तो वो तो ऑब्वियस है कि आज आपने साइन किया है, तो कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट कीजिए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिए, आज की डेट का क्रिएट कीजिए चाहे बेशक, लेकिन वो ये होना चाहिए कि उस टाइम, मतलब देखिए मैं सर्टिफिकेट देता हूँ ना, कि आज की डेट में मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि इन्होंने 3 साल पहले ये काम किया था,
आई कैन इशू टुडे। देयर आर टू एस्पेक्ट्स कि किस डेट में मैं लेटर इशू कर रहा हूँ और किस पीरियड के बारे में मैं इशू कर रहा हूँ। ठीक है, फाइन, थैंक यू। Thank you. Dr. Renu Arora's question now. Are we getting 3 increments for PhD completed during service? Are we getting 3 increments for PhD completed during service? हाँ मिल रहे हैं 3। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sir, at our college we are not getting. वो अभी थोड़ा सा जो आपका अभी जो जिन लोगों को पहले मिल गए थे 2015 से पहले उनका हो गया, 2015 वालों को थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो क्लैरिफिकेशन उसका आने वाला भी है मेरे ख्याल से। सून यू विल बी गेटिंग दैट। Another question by Dr. Poonam Nasa. I have a break in ad hoc service and I haven't done PhD. So which scheme she asked would be good for her? आप मुझे पूनम नासा जी का जरा माइक ऑन करके अगर बताएं मुझे कि आपका पहला जो डेट बताइए मेरे को कि कब कितने साल में आपने ज्वाइन किया था, कब ज्वाइन किया था, उससे पीछे कितने साल का एक्सपीरियंस था आपका डॉक्टर? हेलो सर, दिस इज पूनम नासा। मैंने पहले राजधानी कॉलेज में काम किया करीबन 1 साल। देन आई हैड अ ब्रेक ऑफ 5 days। देन देयर आफ्टर आई जॉइन हंसराज कॉलेज। फिर वहां से मेरा परमानेंट हुआ माता सुंदरी कॉलेज में। सो अगर मैं कंटिन्यूएशन सर्विस की बात करूं तो आफ्टर जॉइनिंग हंसराज कॉलेज आई जॉइन माता सुंदरी इन कंटिन्यूएशन। बट उससे पहले मेरा कब ज्वाइन किया आपने? सर माता सुंदरी में मैंने ज्वाइन किया 18 जनवरी 2010 में किया। और हंसराज कॉलेज में आपने कब ज्वाइन किया था? सर 1 साल वहां पे काम किया मैंने। कंटिन्यूएशन रहा उसके बाद जब आपने ज्वाइन किया? हाँ सर, उसके बाद कंटिन्यूएशन है, कोई ब्रेक नहीं है। उससे पहले वाला 5 दिन का ब्रेक हो गया? हाँ जी सर। वो कौन सा कॉलेज था? सर राजधानी कॉलेज। कितने महीने काम किया था वहाँ पे? सर वहाँ पे भी 1.25 साल काम किया था। वो प्रॉब्लम आएगी आपको, वो प्रॉब्लम तो आएगी सर आपको। फिर इसका मतलब राजधानी कॉलेज में जब मैंने काम किया दैट पीरियड आई हैव टू लूज ना, बेसिकली उसका मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अब देखिए 2 चीजें हैं। मैंने कहा ना आपको कि मैं इंटरप्रिटेशन करके बता रहा हूँ। मैं तो चाहूंगा कि सबको बेनिफिट मिल जाए, लेकिन जो कैश 2010 का जो क्राइटेरिया है वो यही कह रहा है कि 1 साल से ज्यादा की। क्या आपकी राजधानी कॉलेज में, इसमें हंसराज कॉलेज में 1 साल से ज्यादा की सर्विस थी? यस सर। तो वो पहला वाला क्लॉज आपका पूरा हो गया। दूसरा है आपका कि सिलेक्शन कमेटी थी। तीसरा ये है कि यू हैव इन कंटिन्यूएशन यू हैव जॉइंड। यस सर। आप देखिए भर दीजिए, वो वाला भी भर दीजिए। आप क्या कहते हैं, हंसराज कॉलेज वाला भी है। लेट्स सी दे विल पुट द ऑब्जेक्शन एंड फाइन, क्योंकि पहले तो लोगों को मिल गए हैं प्रमोशन। पहले जो लोगों को प्रमोशन मिल गए हैं उनमें काउंट हो गया था। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वो वाला जो डोंट फॉरगो दैट, राजधानी कॉलेज वाला फॉरगो ना करें उसको। और क्योंकि पीरियड ज्यादा लंबा भी नहीं है, आप उसको भरिए, ठीक है। और काउंट करवाने के मतलब भेजिए, आप उसको फॉर्म में भर के भेजिए। लेट देम पुट द ऑब्जेक्शन इफ दे वांट टू। So sir, since I have not done PhD, which option will be good for me? 2010 or 2018 according to you? 2010 करिए ना आप। 18 में आप एडॉक पीरियड का कहां से लाएंगे? टीआईसीज का वो लाएंगे आप वहां पे ग्रेडिंग असेसमेंट। Yeah, I know sir, it will be very difficult for me in that case. और राजधानी से कोई नहीं देगा आपको, ना राजधानी वाला देगा ना हंसराज वाला देगा। Yes sir. Okay, thank you sir. कहेगा कि मैंने काम नहीं किया, मुझे तो नहीं पता आपने कब काम किया था। वो टीआईसी भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। I know sir. तो इसीलिए आप कैश 2010 भर दीजिए। Okay sir. Thank you. Okay, so can we move on to the next question? The next one is by Sarika Bhatnagar. She asks, the ad hoc experience has already been counted for her first promotion. Can the university reverse that when giving second promotion? देखिए ये जो 2012 से पहले जितने लोगों के प्रमोशन हुए थे उनका फर्स्ट स्टेज में एड हॉक एक्सपीरियंस काउंट हो गया था बिना किसी प्रॉब्लम के। ये सारी प्रॉब्लम जब ये आई 2012 के बाद, जब यहाँ पर सीएजी का ऑडिट हुआ, तो सीएजी ने बोला कि ये जो ब्रेक वाला है तो ये आपका बेनिफिट क्यों दे रहे हो? क्योंकि सीएजी का ऑब्जेक्शन इसलिए आया क्योंकि आप अरियर्स दे रहे थे प्रमोशन के, तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन थी, तो इसलिए उन्होंने पंगा डाला। जो आपने बोला है कि यूनिवर्सिटी क्या रिवर्स कर सकती है उसको, देखिए करने को कर सकती लेकिन करेगी नहीं। इसी चक्कर में आगे प्रमोशन नहीं कर रही। वो कहते हैं हम रिकवरी नहीं करना चाहते, इसी चक्कर में हम नहीं कर रहे हैं, तो इट विल नॉट बी रिकवर्ड। मतलब आपको एक बार लेटर आ गया ना यूनिवर्सिटी से जिसमें उन्होंने बोला होगा कि प्रमोशन हो गया, एक लेटर आता है यू हैव बीन प्रमोटेड टू इट, यूनिवर्सिटी पे फिक्सेशन आ जाती है, तो फिर आपका ये रिवर्स नहीं होगा।
तो मतलब आगे के प्रमोशन के लिए यू कैन अप्लाई सेफली। प्रमोशन के लिए बिल्कुल आप अपना सेकंड वाला, बहुत अच्छी बात है, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, आप आगे सेकंड वाले के लिए करें ना। वही उसको लग रहा है कि मतलब आई थिंक थर्ड एप्रीहेंशन है कि आगे डरने वाली बात नहीं है कि हम भरेंगे। कई लोग तो ऐसे डर के मारे नहीं भर रहे कि हम भरेंगे तो पहला वाला हमारी रिकवरी ना हो जाए। क्यों हो जाएगी रिकवरी जब आपको दे दिया उन्होंने? ऐसे नहीं होगी रिकवरी। Dr. Hemlata, I think your query has already been answered, so I think I'll move on to the next one. Pooja Jaggi, Dr. Pooja Jaggi is also already asked. Sonia Aneja, can 2010 under revised UGC 2018 regulation, CAS 2010 under revised UGC 2018 regulation, which form to be filled? I somehow not able to make sense of the question. See, basically, I'm just one second. Arun, I'm just wanting to ask you that if we are interested to fill the CAS 2010 under revised UGC 18 regulation, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म जाएगा? CAS 10 वाला या CAS 18 वाला? CAS 18 वाला ही ना? मैंने बताया है आपको कि अगर आप CAS 2010 वाला भर रहे हैं, अभी CAS 2018 नहीं आया है, ठीक है, तो इसीलिए CAS 2010 भरेंगे। उसके दो फॉर्म्स हैं, 11 जुलाई 2016 से पहले के, 11 जुलाई 2016 के बाद के। तो उनमें से मैंने कहा वो फॉर्म मैं भेज दूंगा, तो वो भर दीजिए आप। CAS 2010 भर दीजिए। वो रिवाइज्ड वाला ही होगा? उसमें कुछ है ही नहीं, रिवाइज वाला नहीं है, वो वही पुराना है। लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि आपको सिर्फ वो असेसमेंट करनी है आपको एपीआई की 20 पॉइंट की। वो रहने दो, उसको जो पॉइंट्स हैं आपके, तो 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 45 पॉइंट निकालने हैं, वो निकाल देंगे उसमें। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पुराना फॉर्म है या नया फॉर्म। ओके ओके। एंड द अदर थिंग वाज CAS 2018 के लिए आपको नया फॉर्म चाहिए। अच्छा, so the other thing was कि जैसे we were ad hoc for 2 years in continuation in Mata Sundari only from 2008 to 2010. Then we had our permanent key interviews in Feb 2010 and we got selected और हमारा permanent हो गया। नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग कंटिन्यूएशन में नहीं, वही सुनो ना। तो what they did was कि जैसे the interview was supposed to be held, जिस दिन interview होनी थी, that day they stopped the, I think the जो हमारा था ना ad hoc का period, and then the interview was held and the result came after 2 days I think or something, and we joined on the मतलब 3-4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, मतलब 18th to 22nd interview was held on the 18th and we joined permanent on the 22nd. आप समझ रहे हो? बड़ा injustice हुआ आपके साथ। Sir, even in the BLED department, we were. फिर अब हम क्या करें? मतलब तो हम 2010 भर सकते हैं? भर दीजिए, 2010 भर दीजिए, लेकिन ये पंगा पड़ गया ना, कंटिन्यूएशन में नहीं ज्वाइन किया। अब वो तो we were working for full 2 years without any break in Mata Sundari itself. मतलब सॉरी टू से कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं या कोई भी होते हैं, उनको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे आप, क्योंकि थोड़ा रूल्स का पता होना चाहिए कि कौन किसके डिसएडवांटेज। इसीलिए तो कहते हैं लोगों को कि भाई ऐसे नहीं किसी को भी बिठा देना चाहिए, बंदे को पता होना चाहिए कि यार किसका नुकसान हो रहा है, किसका भला कर रहे हो आप। आपने बिकॉज हमारा ना ये हमारा यही ना, मैं भी थी, 1-2 और भी थे, तो कंटिन्यूअस 2 years we had in Mata Sundari college itself till Feb 2010. आपके प्रिंसिपल अभी तो नहीं है ना ये? नहीं गलत किया वैसे उन प्रिंसिपल ने। तो फिर हम क्या करें? अब भर दे 2010 वो जो आप CAS 2010 भर दीजिए। देखिए मैं आपको यही कह रहा हूँ, आप भर दीजिए। बाकी ये टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, लेट्स सी इन द मीन टाइम यूजीसी से कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए, जो मैं बोल रहा हूँ वो ब्रेक को रिलैक्स कर दें, तो आप भर दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन होगा नहीं। मतलब तो फिर क्या करूँ? 18 भरूं के 10 भरूं? 18 के लिए फिर वो रिटायर्ड टीआईसी से कराना पड़ेगा। हाँ, वो फिर आपको ग्रेडिंग पूरी करानी पड़ेगी पीछे से। वो उसकी वही दिक्कत है ना, इसका CAS 2010 का वो कैलकुलेशन वाज वर्किंग आउट बेटर बेसिकली। हाँ वो तो है ही, लेकिन इसमें यही कंटिन्यूएशन वाला पंगा है ना। तो ये 3 दिन का भी फर्क पड़ेगा, 18 और 22 का। बिल्कुल, वो कह रहा है ना कंटिन्यूएशन विदाउट एनी ब्रेक लाइन। ओहो, एक्चुअली इतनी ब्यूरोक्रेटिक इनसेंसिटिविटी है ना मैम कि कोई ये नहीं सोचता कि मतलब किसी को आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हो। वो कहेगा नहीं भाई मैं मेरे हाथ से गलत किया। और इससे हमारा 2-2.5 साल का एड हॉक यही सेम कॉलेज में बेकार जाएगा अगर नहीं काउंट हुआ तो। बिल्कुल।
आप देख लीजिए, वो टीआईसी वाला अगर बन जाती है बात, तो उसमें एक साल छोड़ दीजिए। देखिए बात सुनिए ना, मेरे घर में 2 साल है, तो अगर आपका 4 साल में 3 नहीं बन पा रहे, 5 में 4 बन पा रहे, मतलब 1 साल और आगे करके, तो 1 साल तो बच जाएगा आपका। कैश 2018 में करते हैं आप अगर। चलो ठीक है, अदरवाइज आई विल जस्ट चेक विद यू लेटर देन। हाँ, ये सब बाद में आप बता दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक, थैंक यू सो मच। Okay. There are requests, Pooja requests that if you can share the forms with Lokesh, and then he can pass it on to the others. The forms on his email ID, the ones that you said that you will share the forms that we can fill, वो आप लोकेश को भेज दीजिए या किसी को भेज दीजिए, वो फिर सब। ये जो फॉर्म बता रहे हैं ना, ये ऑप्शन फॉर्म अलग है, प्रमोशन फॉर्म अलग है। ऑप्शन फॉर्म तो आपको ऑप्शन दे रहा है ना कि आप किस में करना चाह रहे हैं। प्रमोशन फॉर्म फिर वो उसके बाद आता है जी। तो आप प्रमोशन फॉर्म भी भर दीजिए अपना। ऑप्शन तो एक्सरसाइज कर ली। मैं आपको करूंगा एक चीज है कि आप इसका ना मैनुअली जमा करा दें और एक कुछ प्रूफ अपने पास रख लिया करें। अगर आप डायरी नहीं करा सकते तो आप मेल स्कैन करके मेल करके पीडीएफ भेज दिया करें कि वी हैव ऑलरेडी अटैच्ड दिस इन द ऑफिस, प्लीज फाइंड द सॉफ्ट कॉपी आल्सो एनक्लोज्ड। एक मेल भेज के रखते हैं सो दैट देयर इज अ प्रूफ कि व्हेन यू हैव अप्लाइड। अच्छा, तो कॉलेज के मेल पे कर दें तो that saves the administration of giving the receiving, but it gives us the ऑफिशियल ईमेल आईडी होनी चाहिए कॉलेज की, प्रिंसिपल की पर्सनल ईमेल आईडी पे मत भेजना। हाँ जी, of course. That means, sir, but we will give one promotion at a time ना, जैसे जिनकी 2 ड्यू है, ऑप्शन फॉर्म तो दोनों प्रमोशन के लिए भर देंगे। आप ऑप्शन फॉर्म तो एक ही ना, ऑप्शन फॉर्म भर दीजिए। पहली बार में पहला प्रमोशन होगा, उसके बाद दूसरा। 6 महीने का टाइम दिया हुआ है। देखो यूजीसी रेगुलेशन में भी 6 महीने का टाइम है कि भरने के बाद आपको 6 महीने में करने हैं उन्होंने। तो उनकी कोर्ट में बॉल डालिए ना। आप अपने पास ही बॉल लेके बैठे हुए हैं कि हम ही नहीं भरेंगे फॉर्म। आप तो अगर 2 प्रमोशंस ड्यू हैं तो दोनों फॉर्म साइमल्टेनियसली अलग-अलग भर दें और सबमिट करें। 2 है 3 है, आप भर दीजिए सारे। आप फॉर्म भर के दे दीजिए। ठीक है, प्रमोशन फॉर्म भी भर दीजिए। इनको करने दो ना, आप सिलेक्शन कमेटी कब करते हैं? सर प्रमोशन फॉर्म भी दोनों प्रमोशंस का भर दें। फॉर एग्जांपल 14 to 17, सॉरी, या ओके फाइन। But won't this be considered only after July 21? क्योंकि July 21 तो तक तो उन्होंने खाली ऑप्शंस मांगे हैं, उसके बाद ही तो कुछ करेंगे बिना। नहीं, ऐसा नहीं है मैम। वो ऑप्शन दिया आपको जुलाई 2021 तक। आप पहले कर रहे हो ना, तो आप पहले करेंगे। हाँ, पहले कर लो। हाँ, वो आपका पहले करा देंगे अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो। हाँ, ऐसा नहीं कि जुलाई 2021 के बाद ही होगा। वो जुलाई 2021 के बाद कोई नहीं कैश 2010 भरने वाला। मैंने बताया ना आपको, पूरा एपीआई कौन लेके आएगा? तो जुलाई 2021 के, मतलब 18 जुलाई 2018। तो बेसिकली एक तरह से तो मना किया है उन्होंने कि 18 जुलाई 2018 के बाद हम कैश 2010 की ऑप्शन नहीं दे रहे एक तरह से। तो क्योंकि दे रहे हैं तो वो पुराने एपीआई स्कोर पे चले जाओ आप। रिलैक्सेशन आपको 18 जुलाई 2018 तक ही मिल रही है। Sir, एक चीज और, Garima just asked if we have already filled the form 2010 wala, CAS wala, so and we are into relax, so we should change that form which we have submitted to the college earlier. I also want to ask that question on because I've also done the same thing. So what Pooja is asking and what I want to ask is कि जब हमारा due था, my promotion was like 2012-13 में ही due थी। तो जब हमें ऑप्शन दिया कॉलेज ने कि आप फॉर्म्स भर के दे दीजिए, हमने कैपिंग वाले फॉर्म्स ऑलरेडी कॉलेज को सबमिट कर रखे हैं। भर दिया आपने, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि उसमें कोई पीरियड का लॉस तो नहीं हो रहा आपके? वो आपकी तो 20 वाली पॉइंट तो आ ही रहे होंगे ना, 20 पॉइंट तो, और वो तो आ ही रहे होंगे। हमारे उससे आ रहे हैं, तभी हमने भर दिए थे। बट आगे मैंने बिटवीन द कप एंड द लिप, वो अलग बात है। लेकिन एक बात बताओ, अभी आप उसको दोबारा भरोगे तो कोई चेंज होगा? क्लेम तो उतना ही करोगे ना, 20 से ज्यादा ही क्लेम करोगे ना। हाँ, चेंज ऐसे होगा सर कि कैपिंग जब नहीं होगी तो पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। नहीं, वो इट डजंट मैटर। आपको देखो वैसे भी भरना जरूरी है। ये बात मैं आपको एक बात बताऊं, ऑफिस मिसप्लेस कर देता था। एक बात मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने जो रिलैक्सेशन दिया ना, वो सिर्फ इसी चक्कर में दिया है कि एपीआई का नाम भी रह जाए और कोई ये ना रहे कि भाई गवर्नमेंट ने वापस कर दिया, एपीआई खत्म हो गया। एपीआई का अपनी बात भी रख ली उन्होंने और आपको भी बेनिफिट दे दिया। बिल्कुल सही बात। तो उस अगर सुनो, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि कॉलेज में ही पढ़े हैं, कहीं आगे तो भेजे नहीं इन्होंने। तो करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते तब भी वो उतनी क्राइटेरिया आज का फुलफिल हो जाना चाहिए उसमें। मेरे ख्याल से रहेगा, दोबारा फिल कर लो। मुझे लगता है सॉफ्ट कॉपी इज बेटर, क्योंकि कई बार हार्ड कॉपीज मिसप्लेस हो गई, इतनी देर हो चुकी है, वो पता नहीं पड़ी।
आप कॉपी करके साइन करके मेल कर देना ना दोबारा से। So you suggest sir हम एक बार दोबारा फिल करते हैं because we don't know कि वहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ है वो उसको कैश पुराने से ही लिख के चले। They might not give us some relaxation. एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। आपने एक ऑप्शन फॉर्म की अपनी कॉपी रखी हुई है? जी हाँ। उसकी फॉर्म की कॉपी रखी है। एक जो पहला पेज है ऑप्शन, जो प्रमोशन फॉर्म का जो पहला पेज है उस पे अपने कॉलेज के लोगों के साथ जाएगा वो, उसके साथ एक कवरिंग लेटर लगाइए अपना और उसमें बोलिए कि आई हैव ऑप्टेड फॉर कैश 2010, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसेस माय एप्लीकेशन एज पर कैश 2010 रिलैक्स्ड बाय यूजीसी रेगुलेशंस 2018। एक कवरिंग नोट बना के ऑप्शन फॉर्म की कॉपी लगा के प्रमोशन फॉर्म नया भर के उस पे कवर लेटर हेड लगा के अपने माता सुंदरी कॉलेज का अटैच करके साथ में दे दीजिए। डन सर, डन श्योरली। थैंक तो मतलब फॉर्म पीछे वाला ही रहेगा व्हाट वी हैव ऑलरेडी फिल्ड। फॉर्म तो वही है जब तक कोई कल को यूनिवर्सिटी बोले कि भैया फॉर्म ये वाला हो जाए तो आपको तो आज की डेट में तो अपना क्लेम दे दीजिए ना, फॉर्म जो होना होगा इससे भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात तो है नहीं। क्योंकि फॉर्म तो अभी दोनों वही है ना, सेम ही चल रहे हैं कैश फॉर्म वही है। कल को वो कहते हैं कि हम एक कॉमन फॉर्म निकाल रहे हैं, कहेंगे तो रिवाइज कर देंगे उसको, नहीं है तो इसी से कर दो भाई हमारा प्रमोशन। हम क्यों ये सोचते रहेंगे वो नया फॉर्म आएगा तब हम भरेंगे, हम तो भर के अपना दे दें। ठीक है तो हम ना भरें। गुड। अच्छा, सो चेतन इज आस्किंग, जो शायद आप कर चुके हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर डिस्कशन, is it mandatory to complete the refresher course during the assessment period only or should it be done currently? नहीं, 31 दिसंबर 2018 तक तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी एलिजिबिलिटी 18 दिसंबर 2000 तक की है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। लेकिन 31 दिसंबर 2018 के बाद आपकी एलिजिबिलिटी अगर फॉल कर रही है तो फिर उस पीरियड में जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। Another question ये किसने पूछा है? I think Sarika. I have 2 promotions pending under CAS 2010 from stage 2 to stage 3 and stage 3 to stage 4. Should I fill my option form for both of these promotions in a single form or 2 separate forms? अलग-अलग फॉर्म जाएंगे, अलग-अलग ऑप्शन फॉर्म जाएंगे। Okay. Ravneet, I think, has the same apprehensions that we had already filled up the forms at the college. So I think that question gets answered, Ravneet. Yes, it has got answered. Yes. Yeah. Pooja, I am eligible for my second promotion in 2015 and third in June 2018. That means I have to fill CAS 2010 relaxed for both my promotions. सेकंड प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हैं 2015 में, थर्ड प्रमोशन जून 2018। यस, अब कैश 2010 में आप मतलब जुलाई 2018 के बाद ऑप्शन जो है ये कैश 2018 लागू होता है, उससे पहले आप कैश 2010 अप्लाई कर सकते हैं। near I'm मतलब escape that. एक महीने से आप बच गए। That's what. Thank you sir, thank you so much. Dr. Rashmi Verma, direct permanent appointment without any ad hoc experience, MPhil degree and PhD degree obtained after joining the service. Which scheme should she opt for promotion and for further promotions? आपके पहले प्रमोशन के लिए 6 साल लगेंगे आपको, और आपने ईयर नहीं लिखा, मैं कैसे बताऊं आपका किस ईयर में आपने ज्वाइन किया है? Rashmi, can you tell your date of appointment in this college? The first appointment? Date of Rashmi Verma, date of joining 23rd February 2010. 2010 ना? 23rd February 2010। अच्छा, कोई भी नहीं था तो आपकी इनका प्रॉब्लम होगा कि इनको 4 महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे इनको। 30 जून 2010 को ही होगी इनकी एप्लीकेबिलिटी, जिस डेट को इम्प्लीमेंट हुआ है ये कैश 2010 इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये पुराने वाले में नहीं है? नहीं, इनकी ज्वाइनिंग इनकी फरवरी में हुई है ना, तो इनका फरवरी 2010 में हुई है, तो फरवरी 2016 में इनका फर्स्ट प्रमोशन ड्यू हुआ, तो कैश 2010 भरेंगे ये। ठीक है। Dr. Renu Arora asks, shall we fill our option forms through email to college? हार्ड कॉपी तो वो मांगेंगे, आप सपोर्टिंग में आप ईमेल कर दीजिए, लेकिन हार्ड कॉपी तो आपको देनी पड़ेगी। Eventually तो देनी पड़ेगी। How to fill the option forms today during this time? She says, pandemic time में कैसे भरें? आप मेल से दे सकते हो।
ऑप्शन फॉर्म आप मेल से भर सकते हो। कैश 2010 लिखिए या कैश 2018 लिखिए, जो मैंने बताया वो लिख के आप वो मेल से दे सकते हो। आप ऑप्शन फॉर्म दे सकते हो मेल से। We'll have to request principal Sorry? ma'am to accept it on the email. We have to request principal ma'am to accept it on the email as of now. I think ma'am, पूजा वो तो अपना मैटर है ना अंदर का, बाद में बात तो करेंगे। आपस में देख लीजिए। बात हो जाएगा। आई थिंक मैम हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, तो वो हम बात कर लेंगे, फिर जैसे भी होगा व्हाटएवर इज फीजिबल, आई थिंक दैट कैन बी वर्क। अभी मेरे हिसाब से सेशन खत्म करना चाहिए, बहुत देर हो गई। अरुण जी ने पानी भी नहीं पिया, मैं लगातार देख रहा हूँ। Yeah, and I think sir has, if you can look at the chat box, बहुत लोगों ने thanks किया है, and we really gained from your insightful observations, Arun. So it's been a pleasure having you. I now request I think most of the questions are answered. So I now request Dr. Manisha Mathur to present the formal vote of thanks to Dr. Atri. Dr. Manisha Mathur. Thank you, Garima. Good evening, everyone. It's been a long session and a very fruitful one. And on behalf of all my colleagues, I thank you, Dr. Arun Atri, profusely. Your presentation was extremely helpful and it has clarified a lot of our doubts, I'm sure. And I also thank you for patiently answering all our queries. I also thank our principal, Professor Harpreet Kaur, for supporting us, and we were able to organize this session because of her support. And I also thank her for taking out her valuable time and joining us on this virtual platform. Thanks is also due to Mr. Manjeet Singh, who also joined us, I think, for a brief while despite his busy schedule. And thank you very much, Lokesh, for arranging this session. And last but not the least, I thank all my colleagues for joining and participating. Thank you everyone. Over to you, Garima, for a formal closure of this meeting. So very, very fruitful, informative session indeed. And Arun, you've already shared your email ID and your mobile number, and you also graciously agreed that you'll share the forms. So I think very, very grateful. मैं लोकेश जी को भेज देता हूँ, मैं लोकेश जी को अभी भेज देता हूँ, वो आपको भेज देंगे। Perfect. Thank you. Thank you. नमस्कार। नमस्कार। Okay, thank you. लोकेश जी, मैम से बात कर लो ना फॉर्म्स के लिए। मैडम अभी यही थे, मैडम को सब कुछ तो मालूम है। हाँ, तो एक बारी बात, ऑप्शन फॉर्म जो हमारे हैं वो हम भर देना। ऑप्शन फॉर्म तो भर भर लो ना, ऑप्शन फॉर्म भर लो, कौन मना कर रहा है ना? तो मैम को मतलब एक बारी ऑफिशियली मैडम को मालूम है। आप भरो ऑप्शन फॉर्म, आप जमा कराओ ऑप्शन फॉर्म, 1 2 3 जितने भी ऑप्शंस बनते हैं आप जमा करवाओ कॉलेज में, सभी लोग। ठीक है, जमा तो मालूम है, कह दिया था मैंने, पहले ही बोल दिया था मैडम। हाँ, ग्रुप में एटलीस्ट हम लोग फिर डाल लेते हैं सारे के सारे। हाँ, ऑप्शन हम भर के अपना सबमिट कर देना। हाँ, कर देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हमारे। हाँ जी, बोलिए। नहीं, बस अब क्या बोलें। क्यों बोलो। नहीं बोलो, आप कुछ कह रहे थे, बोलो। नहीं। चलो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।